السلام علیکم. جی مولانا خیریت ہیں؟ جی بڑھیا, آپ سنائیے. بس بڑھیا, اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں. جی بتائیے. آواز جا نہیں رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو, ہاں. آپ کا کیا نام ہے ہلو. مولانا؟ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. ہاں, آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ معراج ہے. جی معراج. معراج. جی ہاں تو چلیے اصول شرائط طے کریں پھر. ہاں جی شروع کر دیں بس. ہاں اصول شرائط طے کر لیتے ہیں پہلے. ہلو. ہاں آپ میوٹ کر جی لو نشید بھائی. میں بول رہا ہوں اصول جی شرائط طے کر لیتے ہیں. ہاں کر لیجیے. ہاں دیکھیے ایسا مولانا, ہمارا تمہارا موضوع ہے حفظ الایمان کی عبارت. جی اگر موضوع سے کوئی بھاگا تو اس کی شکست مانی جائے گی. جی 2 منٹ آپ بولیں گے, میں آپ کی ہلو. جی جی مولانا آواز جا رہی ہے میری صاف آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, بالکل آواز آ رہی ہے. ہاں دیکھیے 2 منٹ کی ٹرن ہوگی ہماری آپ کی. 2 منٹ میں بولوں گا, آپ میری سنیں گے, آپ بولیں گے میں آپ کی سنوں گا. بیچ میں کوئی کسی کے مداخلت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, بالکل بالکل. موضوع سے کوئی نہیں بھاگے گا. موضوع ہمارا تمہارا حفظ الایمان ہے. گالی گلوچ جی جو کرے گا اس کی شکست ہوگی, جی ٹھیک ہے؟ جی ہاں اب میں اپنا دعویٰ چلیے. پیش کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, شروع کیجیے. دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ آپ کے مولانا کی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے حفظ الایمان. جی اگر آپ کہو تو میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. نہ رہنے دیجیے, مت بھیجیے, ہمیں معلوم ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جی یہ اس میں لکھ رہے ہیں جی یہ بڑھیا. جی جی بولیے. یہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول جی صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا جی کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ جی ایسا بالکل علم درست. غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر سبھی مجنو و بلکہ جمی حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی نبی کریم صلی جی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے, ایسا علم غیب یہ جی کہہ رہے ہیں کہ جانور کو, پاگل کو, بچے کو, سبھی کو حاصل ہے. اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ جی تو یہ نبی جی کریم آپ صلی اللہ اسی علیہ وسلم کی, پہلے مجھے جی بولنے جی لینے, پھر اس کے بعد میں آپ بولنا. جی یہ جی نبی کریم صلی اللہ, جی ارے مجھے بول تو لینے دیں مولانا, آپ بولنا, آپ کو میں ٹائم دوں گا, پھر آپ بولنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری گستاخی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. اب یہ گستاخانہ عبارت ہے. اسی پر علماء حرمین شرفین اور تمام ہی اپنے ایشیا کے علماء کرام نے, بر صغیر کے علماء کرام نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے, جس کی بنیاد پر اشرف علی تھانوی جو ہے وہ کافر ہے. اب آپ بولیے. اچھا, اب میں بولوں. جی بولیے. صفحہ نمبر 12 پہ آئی ہے, اسی کتاب کے یہ اوپر 15 صفحہ نمبر 12. پڑھیے صفحہ نمبر 12 پڑھیے. جی کھول لیا. چلو پڑھو, آپ پڑھو. ہاں سوال سوم ہے, جواب سوال سوم ہے. جی ہلو. آپ پڑھو, میں سن رہا ہوں آپ کی. میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا, ہاں جب تو میری میں باری سن آئے رہا گی ہوں. میں بولوں گا. آپ بولو. جی میں اب اسٹارٹ کرتا ہوں عبارت. یہاں سے مولانا اشرف تھانوی سے کس نے سوال کرا کہ علم غیب سے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں ہے. سوال اس کا ہے. اب اس کا جواب دے رہے مولانا کہ مطلق غیب سے مراد اطلاق شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے اور ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو. اسی بنا پر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اور ولو کنت عالم الغیب وغیرہ فرمایا گیا. اور جو علم باواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے, تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا. قرآن مجید میں لفظ رانا کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی و امتی و ربی کہنے سے نہیں وارد ہے. جی ٹھیک ہے, بول لو آپ اپنا پورا ٹرن جی کر لو, پوری ٹرن کر لو آپ اپنی. تو میں یہاں سے جو سوال کیا تھا کہ یہ جو مولانا اشرف تھانوی کی جو عبارت لکھی گئی ہے اس میں علم غیب کے اوپر لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. جی
जो इल्म गैब जिनका अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, इबारत उसमें लिखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। जो आपने पढ़ा उसका खुलासा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते तो उनको आपने जब इबारत के अंदर पढ़ा है कि बाज गैब है या कुल गैब मुराद होता। अगर तो आपका टाइम हो गया ये बात मौलाना, आपका टाइम हो गया जी, अब आप चुप जाएं। जी देखिए सामीन हजरात, यहाँ मुझे उससे कोई शिकवा नहीं जो इन्होंने पढ़ा, वहाँ आलिमुल गैब की बात लेकर चले तो मुझे आलिमुल गैब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आलिमुल गैब की बात ही नहीं है। हमें जो शिकायत और जिस पर इन पर कुफर का फतवा लगा हुआ है, यहाँ इल्म गैब की बात है। अब ये इल्म गैब मान भी रहे हैं, बाज इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद में तशबीह दे रहे हैं ये जानवरों पागलों से। यहाँ मौलाना साहब कहाँ पर परस्ती जो है नहीं वो जहन्नम से नहीं बचाएगी। मौलाना साहब, मौलाना मेहराज साहब, आप ये समझें ये आलिमुल गैब की बात नहीं है, यहाँ जो है इल्म गैब की बात है। ये दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ, देखो फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, इल्म गैब की बात है, यहाँ आलिमुल गैब की बात नहीं है। अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से अब क्या कहना है, ये आलिमुल गैब नहीं कह रही, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, ये तो खुद तशरीह कर रहे हैं इस बात की, यानी बाज गैब है या कुल से तो आलिमुल गैब हो गया। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं, ये खुद कह रहे हैं अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ये कह रहे हैं कि अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर समी मजनूद बल्कि जमी हैवानात बाहिम के लिए भी हासिल है। मौलाना पहले समझो बात को, यहाँ जो है ये आलिमुल गैब की तो नफी खुद ही कर रहे हैं, ये कुल की तो नफी कर रहे हैं खुद ही। यहाँ बात इल्म गैब की चल रही है, आलिमुल गैब जो है वो अल्लाह के लिए है। यहाँ इल्म गैब की बात है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इतलाक होता है गैब का, वो इल्म गैब का होता है, यानी अकाई का होता है, खुद का नहीं होता, जाती का, और ना ही कुल का होता है। अब ये मुझे बतला दो कि ये कौन सा तरीका फिर तुम्हारा जो तुम नया तरीका निकाल कर ला रहे हो कि तुमसे सवाल किया जाए इल्मुल गैब का तो जवाब इल्म गैब का क्यों दिया जा रहा था, फिर भी कुफ्र है ये भाई। जब तुम ये कह रहे हो कि सवाल आलिमुल गैब का हुआ है तो यहाँ तो आलिमुल गैब नहीं, ये कहना चाहिए था तुम्हारे मौलाना शबीर थानवी साहब को कि आलिमुल गैब तो अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। यहाँ तौहीन करने की जरूरत क्या थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ तो इल्म गैब की बात है। मौलाना आप जरा पढ़ें, इस तरीके से समझें। हाँ हो गया, बोलो जी। तो आपने जो पढ़ा कि बाज गैब है या कुल गैब है, बाज गैब उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें हुजूर है कि क्या तखसीस है। बिल्कुल मौलाना ने सही और तंदुरुस्त बात लिखी है, ठीक है। क्योंकि बाज गैब और कुल गैब, कुल और बाज में फर्क है। कुल बोलते हैं जो हर चीज जिसको मालूम हो, और बाज जो बोलते हैं वो थोड़ा मालूम हो, पूरी बात मालूम ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात मालूम है जितना अल्लाह को मालूम है। यह असल मौजू यह है मौलाना शबीर थानवी का, अगर थोड़ी बात मालूम है तो थोड़ी बात हर किसी को मालूम है। मिसाल के तौर पर आप बरेली में बैठे हैं, आपको बरेली के हालात मालूम है, मैं यहाँ बिजनौर में बैठा, मुझे यहाँ वहाँ का हालात मालूम नहीं है। ये है मुराद यहाँ पे। आप मुराद क्या ले रहे हैं कि बाज के बाद, ये तो हकीकत नहीं मौलाना ये बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना फारिग कहाँ से हैं? मैं फारिग अभी तो नहीं हूँ, अभी तो मैं तलबा ही हूँ अभी। अच्छा तलबा हो, तो आप ये बताने कि इल्म गैब की तारीफ भी करते हैं। इल्म गैब की तारीफ क्या है, इल्म गैब किसे कहा जाता है, इल्म गैब क्या चीज होती है, इल्म गैब की तारीफ क्या है, जरा ये कोर कर दें आप। मगर मैं सुनिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, मेरी भी टर्न में मना बोले बीच में, पहले मैं बोल लूँ फिर आप बोलना। मैं आपसे इल्म गैब की तारीफ कराऊंगा, और मैं अगर बरेली में बैठा हूँ और आप अगर कहीं बिजनौर में बैठे हैं तो क्या ये भी इल्म गैब होगा? अगर मैं आपसे बरेली की कोई बात बता रहा हूँ, फोन पर बता रहा हूँ, तो क्या इल्म गैब हो जाएगा ये? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। सामईन हज़रात आप सुन लें, सुन लें। हाँ। सुनो जरा, सुनो, मेरे बीच में मत बोलो मौलाना, देखो खल्त मत करो। देखो मैंने आपसे पहले इस बात को कहा था कि आप जब बोलते हो तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे बीच में, मैं सुनता हूँ तुम्हारी, आप भी सुन ले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपनी बारी में बोलना। यहाँ बात जो है इल्म गैब की चल रही है, और इल्म गैब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से भी साबित नस्स कतई से कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया। यहाँ जो है ये इल्म गैब की नफी नहीं कही, बल्कि इन्होंने बाद उलूम गैब या माना है नबी को, मानने के बाद में यहाँ जानवरों से, पागलों से, मजनू से सबसे तशबीह दे रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो कि कुफ्र है। तो अब मुझे ये बतला दो कि इल्म गैब की तारीफ करो मौलाना, कि इल्म गैब की तारीफ क्या है, इल्म गैब कहती किसे है। अब तुम्हारी बारी, बोलो इल्म गैब होता क्या है, तारीफ कर दो जरा इसकी। इल्म गैब जो गैब की बातें जानते हैं, जो बात दूसरा नहीं जानता वो जानता है। इल्म गैब की तारीफ हुई कि जो हर चीज को जानने वाला हो, इल्म गैब इसे कहते हैं। मैंने इल्म गैब की तारीफ की है, और जो आप भी मुराद ले कि बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बाज गैब मुराद, अगर बाज इल्म गैब मुराद लिया जाए तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर बाज इल्म तो हर किसी को है, आपको कहीं का इल्म है, मुझे कहीं का नहीं है, आपको मुझे कहीं का आपको नहीं है, ये तो हर की बिल्कुल बात सामने है। देखिए सामईन हज़रात,
یہ ہے دیوبندی مولوی. آپ نے ان کی علم غیب کی تعریف سن لی. انہوں نے علم غیب کی تعریف کی کہ جو تھوڑا بہت کسی کو معلوم ہوتا ہے, مجھے معلوم ہے, تمہیں معلوم ہے, تمہیں معلوم ہے, مجھے معلوم نہیں, وہ علم غیب ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ علم ہوتا ہے ان کے پاس, دیکھ لیجیے آپ. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم, سنیے مولانا, سنیے مولانا, آپ بعض علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ جی اگر بعض علم ہے, بعض علم غیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس میں کیا تقریر ہے کہ حضور کے پاس؟ ہاں تو مانتے ہیں آپ, بعض مانتے ہیں, بعض مانتے ہیں, بعض مانتے ہیں, مانتے ہیں آپ, مانتے ہیں. ہاں سامعین حضرات سن لیجیے بات, یہ علم غیب نبی کو مانتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ دجال جو نکلے گا اسے قتل کرنے والے کون ہوں گے, کہ گھوڑوں کے رنگ بھی جانتے ہیں, اور ان کے نام بھی جانتے ہیں, ان کے باپوں کے نام بھی جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب پہنچے تو ایک دن پہلے آپ نے نشاندہی اپنی چھڑی سے نشاندہی فرما دی تھی کہ یہاں فلاں کافر گرے گا, یہاں فلاں کافر گرے گا, یہ بھی جانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ ہو رہی تھی, وہاں صحابہ اکرام شہید ہو رہے تھے, تو آپ مدینے سے بتا رہے تھے کہ فلاں شہید ہو گیا, اس سے جھنڈا فلانا لے لیا, اس سے فلانا لے لیا. یہ ساری باتیں جانتے تھے. بعض علم غیب میں ہے نبی کے. تو کیا آپ بھی جانتے ہیں مولانا اس بات کو؟ آپ بھی بتا دیں گے؟ کیا آپ نے تعریف کی ہے؟ سبحان اللہ. تعریف نہیں کی ہے میں نے, تعریف تو میں تم بتاؤں تعریف کیا ہے علم غیب کی. تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تم جانتی نہیں تعریف کیا ہوتی ہے علم غیب کی. ابے مجھے بولنے تو دو, میرا ٹائم تو پورا ہونے دو مولانا, مولانا میرا ٹائم تو پورا ہونے دو. علم غیب کی تعریف تو تم جانتی ہی نہیں ابھی, تمہیں معلوم نہیں کہ علم غیب کی تعریف کیا ہوتی ہے. علم غیب کی تعریف اب کروں گا میں اپنی ٹرن میں, تمہیں بھی معلوم نہیں, میں کروں گا ٹرن. چلو اب بتاؤ تم, یہ بعض علوم غیبیہ میں ہے, اور دوسرا اور تمہارا حوالہ تمہارے گھر کے دوں گا. چلو بولو, اب تم بولو. آپ نے جو بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے, وہاں پہ یہ چیز پہلے سے معلوم تھا, کہ معلوم نہیں تھا, ان کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا. یہ بات میں آپ کو سامنے ثابت بھی کر سکتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں, ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے کفار آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں, آپ ہمیں کوئی قاری دیجیے پڑھانے کے لیے. تو وہ لے کے گئے, ان کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو بھیجے انہیں. واقعی آپ نے پڑھا ہے یہ جو آپ نے بتایا, وہی کے ذریعے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی تھی, تو میں مانتا ہوں, لیکن یہ علم غیب نہیں کیا جائے گا اسے, تو وہی کے ذریعے اطلاع کی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی آپ کا کیا کہنا ہے, آپ بتائیے. بس ہو لیا آپ کا؟ جی دیکھیے سامعین حضرات, انہوں نے کہا کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جانتے. تو علم غیب کی بات ہے ہی نہیں, یہاں بات ہے اس عبارت کی. یہاں علم غیب کی بات نہیں ہو رہی. علم غیب کی اگر بات کرو گے تو مولانا, علم غیب کی بات پہ تو میں تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا, سمجھے نا. اسے تو چھوڑو تم علم غیب کو, کیونکہ تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو, لیکن بات تو آپ نے مان لیا. مجھے صرف یہ بتا دو کہ یہ تمہارے مولانا اشرف تھانوی نے بعض علوم غیبیہ ماننے کے بعد میں, اور جو جانور و پاگلوں سے تشبیہ دی ہے, تو کہ جانور پاگل بھی بعض علوم غیب جانتے ہیں. اب علم غیب کی تعریف سن لو سامعین حضرات کیا ہے. علم غیب کی تعریف یہ ہے مولانا صاحب, ابھی تم میرے خیال سے مدرسے کے قریب میں نہیں نکلے ہو, سمجھے نہیں, برا مت ماننا میری بات کا, تھوڑی کڑوی ہے میری بات. علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو حواس خمسہ سے نہ جان سکے آدمی, اسے علم غیب کہتے ہیں. حواس خمسہ سے جسے نہ جان سکے وہ ہوتا ہے علم غیب. یہ ہے علم غیب کی تعریف. آپ نے جو تعریف کی نا, تم ابھی مدرسے کے قریب میں نہیں نکلے ہو, سمجھے نہیں. جس چیز کو سنیے پہلے پوری میری بات سن لیجئے. جس چیز کو آدمی اپنے حواس خمسہ سے, جو حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, ان سے نہ جان سکے, اسے علم غیب کہتے ہیں, سمجھے نہیں. یہ علم غیب کی تعریف ہے. ہاں, اور تم کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ علم غیب ہے کہ تم وہاں بیٹھے ہو اور میں یہاں بیٹھا ہوں, اور کچھ تم جانتے ہو, بات تمہارے دماغ میں چھپی ہے, تو وہ علم غیب ہوگا. یہ علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے اسے نہ جان سکے آدمی, اسے علم غیب کہتے ہیں. اور قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے غیب کی بات, یہ غیب کی خبریں ہیں یا محبوب ہم تو بات ایسا کرتے ہیں, لیکن وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. ہمارا موضوع ہے حفظ الایمان کی عبارت. آپ اسے یہ بتلائیے کہ آپ اسے درست مانتے ہیں کہ درست لکھا مولانا اشرف تھانوی نے کہ بعض علوم غیبیہ ماننے کے بعد میں اور پھر جانور و پاگلوں کو تشبیہ دے رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کیا تمہارا عقیدہ ایسا ہے, درست صحیح لکھا ہوا؟ جی بالکل, ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور مولانا صاحب نے بھی لکھا ہے. اگر آپ پڑھیے, بات کو پوری پڑھیے, بات کو ایک آپ پڑھ کے سنا دو, آپ پڑھ کے سنا دو, آپ سنا دو. جی میں نے بہت پڑھ کے بھی سنا ہے, آپ آگے سنیے. ہاں, میں نے بات پوری کی جاتی ہے, بات ایک دو عبارت سے نہیں کی جاتی. لکھا کیا ہے, موضوع کیا ہے, بات اوپر سے بتلائی جاتی ہے. آپ پوری عبارت سنیے, پڑھ کے سنا دو. ٹھیک ہے, پڑھ کے سناؤ, بچا لو آپ انہیں, کفر کے ہاتھ سے نکال لو. جی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہاں سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہے علم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا, ہے عبارت نمبر صفحہ نمبر 13 پہ. اور اگر تم پڑھتے رہو, تعویل سے ان الفاظ, پڑھتے رہو, تم پڑھتے رہو. ہاں, اور اگر ایسی تعویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہوتا تو خالق اور رازق وغیرہ ہما بتاویل اسناد الى سبب کے بھی اطلاق کرنا جائز ہوگا, کیونکہ ایجاد اور بقا علم
के सबब में, बल्कि खुदा बमाना मालिक और बकाए आलम के सबब में, ये इल्म के नहीं है, इल्म के नहीं मौलाना, बकाए आलम के सबब में, पूरे आलम की बात कर रहे हैं, बकाए आलम के सबब। हाँ लेकिन मोबाइल में इबारत पढ़ रहा हूँ ना, किताब है नहीं मेरे पास। चलो चलो पढ़ो। बकाए आलम के सबब हैं, सबब हैं, मैं नहीं है, सबब है, सबब हैं, है। हाँ, बल्कि खुदा बमाना मालिक, मालिक, माबूद बमाना मुता कहना भी। हाँ हाँ, भी दुरुस्त होगा, भी दुरुस्त होगा, भी दुरुस्त होगा। और जिस तरह आप पर, हाँ, आलिमुल गैब का इतलाक है, आप पर, आलिमुल गैब का, हाँ हाँ पढ़िए। हाँ, और जिस तरह आप पर आलिमुल गैब का इतलाक तावील खास से, इस तावील खास से, इस पूरा पढ़ो मौलाना, पुराना मौलाना पूरी पढ़ो, खाओ मत, इस तावील खास से, तावील खास से जायज होगा, इस तावील खास से जायज होगा। हाँ, तावील खास से है, खासा नहीं है, इस तावील खास से, खास से जायज होगा। हाँ हाँ हाँ, तावील खास से जायज होगा। इसी हाँ, तरह हाँ, दूसरी तावील की इस सिफत से, की नफी हक जल्ला वाला शानहू से भी जायज होगा। हाँ, यानी हाँ, यानी इल्म गैब बमाना असानी, बिलमानी, बवास्ता, बिलमानी, बिलमानी सानी बवास्ता अल्लाह ताला, बिलमानी सानी बवास्ता अल्लाह ताला के लिए साबित नहीं। हाँ पढ़िए जी, पढ़ो। और अगर अपने जहन में माना सानी को हाजिर करके कोई हाँ, कहता है, फिर कहता फिरे, रसूलुल्लाह कोई कहता फिरे, कोई कहता फिरे, कोई कहता फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। क्या कहा, क्या है, क्या कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कोई कहता फिरे, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, आलिमुल गैब, आलिमुल गैब, समझना बात को, आलिमुल गैब है, हाँ पढ़िए, हाँ मैं वही पढ़ा हूँ, आलिमुल गैब है। और हाँ, ताला शानहू आलिमुल गैब नहीं, हाँ, तो क्या इस हाँ, कलाम को मुंह से निकालने, नाउज़ बिल्लाह मुंह, नाउज़ बिल्लाह मुंह, हाँ नाउज़ बिल्लाह, बहुत तो हजरत नाउज़ बिल्लाह मुंह, हाँ, तो क्या इस कलाम को मुंह से निकालने की कोई आकिल हाँ, मुतदय्यन इजाजत देना गवारा कर सकता है? इस बिना पर तो बानवा फकीरों की तमाम तर बेहुदा सदाई खिलाफ शरा न होगी। हाँ, तो शरीयत में क्या हो, तो शरीयत क्या हुई, शरा क्या हुआ, तो शरा क्या हुआ, हाँ शरीयत शरा क्या हुआ, तो शरा क्या हुआ, हजरत है, शरीयत क्या हुई, बच्चों का खेल हुआ ना, ये लिखा हुआ, तो शरा क्या हुआ, बच्चों का खेल हुआ, नहीं शरीयत हजरत, चलो तुम्हारी किताब में होगी फिर, इसमें शरा है, चलो चलो पढ़ो। तो शरा क्या हुआ, शरीयत क्या हुआ, बच्चों का खेल हुआ, जब चाहा बना लिया, जब चाहा मिटा दिया। फिर ये हाँ, आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का क्या, हाँ पढ़िए, इल्म गैब का तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। हाँ, अगर बाज में गैबिया मुराद है तो हुजूर है कि क्या तस्वीर, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर बिल्कुल दुरुस्त है साहब। तो उसमें हुजूर की क्या तस्वीर है? ऐसा जानवर को पागल को भी है, ऐसा जानवर पागल को भी है ना, ऐसा तो हर किसी को भी है, जानवर को कहीं ना कहीं का इल्म होता है। मादल्ला सुमादल्ला, देखिए कहाँ मेरे साथ, चुप जाइए आप, आपसे बहुत टाइम हो गया मौलाना, तुम्हारे 5 मिनट बोल लिया, तुम चुप जाओ, चुप जाओ। देखिए सामने हजरात, देखिए ये इन लोगों का अकीदा है, ये देखिए पढ़ने के बाद में भी ये कह रहे हैं कि हाँ दुरुस्त है, जबकि इन्होंने पूरी पढ़ ली है और ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसे समझे हुए भी है, मगर ये इनकी क्या है, सिर्फ दजल है ये। देखिए इनका, देखिए क्या कहा है यहाँ कि अगर अपने जहन में मानी सानी को हाजिर करके कोई कहता फिरे कि रसूलुल्लाह आलिमुल गैब हैं, क्या कहा इसने, आलिमुल गैब हैं, आलिमुल गैब की बात हो रही है, और हक ताला शानहू आलिमुल गैब नहीं, नाउज़ बिल्लाह मुंह, तो क्या इस कलाम को मुंह से निकालने की कोई आकिल मुतदय्यन इजाजत देना गवारा कर सकता है? इस बिना पर तो बानवा फकीरों की तमाम तर बेहुदा सदाएं बेखिलाफ शरा न होंगी। तो शरा क्या हुआ, बच्चों का खेल हुआ, जब चाह बना लिया, जब चाह मिटा दिया। फिर ये कि आपकी जात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। देखिए सामाइन हज़रात सुन लीजिए, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी मजनू बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह सुमा मज़अल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसे धर्म से। मुसलमानों गौर करो, ये कह रहे हैं कि सही है, यानी वहां आलिमुल गैब की बात हो रही है, ऊपर से जिक्र करते लाने आलिमुल गैब की, और यहाँ इल्म गैब की। और इल्म गैब बाज मान भी रहे हैं ये नबी को, और बाज मानने के बाद में जानवरों से और पागलों से तशबीह दे रहे हैं। माज़अल्लाह सुमा मज़अल्लाह, तौबा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे मसलक से। मुसलमानों ये है इनका इस्लाम, हेलो ये है इनका इस्लाम। देख लो, इन्हें नबी से मोहम्मद। अब मुझे ये बात बतलाओ तुम मौलाना,
मैं ये कहूं कि तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी बहुत बड़े आलिम हैं, जी ठीक है, जी तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी बहुत बड़े आलिम हैं, जी जी बताइए। तो इसमें अशरफ अली थानवी की क्या जी। तखसीस है? ऐसा आलिम तो सुअर भी है, तखसीस नहीं है, ऐसा तो आलिम सुअर भी है, उसकी भी कोई तो सुअर भी है ऐसा आलिम? तखसीस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। आप मैं अरे इस पर ये भी तो बता दो मुझे, तो ऐसा आलिम सुअर भी है जैसे अशरफ अली थानवी है? ना ऐसा आलिम सुअर की ना बात मुझे नहीं है। बताओ तुम, मैं ये कहूँ कि आपके मौलाना अशरफ अली, सुनिए मौलाना, बीच में मत बोलिए, बात मत काटिए, देखिए बात मत काटिए, देखिए बात मत काटिए मौलाना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आप बोल रहे मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे बात का जवाब बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपके मौलाना अशरफ अली थानवी जो हैं आपके मुजद्दिद हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, तो इसमें अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस है? ऐसा आलिम तो सुअर भी है, कुत्ता भी है, मजनू भी है, पागल भी है। तो अब तुम अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, मुसलमानों देख लो, यानी यहाँ तो सुअर ने कहीं नहीं पड़ा, और वहां जब जानवरों को वो कह रहा है नबी के बारे में कह रहा है अशरफ अली थानवी, तो वहां ये कहना है कि दुरुस्त है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। देख लिया भाई इनका धर्म, ये धर्म इनका देखो। बाज अगर हो तो सुअर भी आलिम है, फिर अगर बाज मैं कह रहा हूँ चलो ऐसा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, चलो जो ऐसी मैं कह रहा हूँ, सुनो, इनके देखिए सामान्य हजरात, इनके मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि बहुत बड़े आलिम हैं, हकीमुल उम्मत मानते हैं साहब, मुजद्दिद मानते हैं, तो इसमें अब वो पूरे हैं या अधूरे हैं? तो इसमें उनकी क्या तखसीस है? मौलाना अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस है? इसमें उनकी क्या खासियत है? ऐसा तो सुअर भी आलिम है जैसे अशरफ अली थानवी है, सुअर को भी हासिल है ऐसा इल्म, तो जैसे अशरफ अली थानवी को है। कैसे हो जाएगा सुअर को? आपका मकसद है सामाइन हजरात सुन ले, सामाइन हजरात, ये है देखो मुसलमान कहलाने वाले अपने आप को, ये है देखिए देखिए, ये अकाबिर परस्ती देखिए इनकी, अकाबिर परस्ती में इतने मदहोश हैं ये कि नबी की तौहीन तो बर्दाश्त कर सकते हैं ये, अब भी बड़बड़ करने लगे मौलाना। आप बोल लो चलो। नबी की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं ना, क्या कहता है अपने उलमा की? कर रहे हो आप, गलत निवार लेके जाए, नहीं कर रहे हो तुम कर रहे हो। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं कि लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ है ना, इल्म गैब लिखा हुआ है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने हेज है, हेज एक जुज है आपके इल्म के सामने। तुम्हारे अशरफ अली थानवी खुद लिख रहे हैं अपनी किताब में मलफूजात में कि जो लोहे महफूज पर इल्म गैब है, नहीं लिखा हुआ मलफूजात में, मलफूजात हकीमुल उम्मत में। अच्छा, कहोगे तो मैं तुम्हारे पास हवाले भेज दूंगा, है? हाँ हवाला भेजिए, आप उसका हवाला भेजिएगा। अगर मैंने हवाला भेज दिया तो क्या मानोगे फिर? बोलो। हवाला मानेगा तो लिखा किसने वो भी तो देखा जाएगा ना। मौलवी अशरफ अली थानवी ने, मौलवी अशरफ अली थानवी ने, सुनिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखो हमारा मौजूद बदल जाएगा, ये मौलाना ये चलाएगा इल्म गैब पर। फिर मौजूद अगर तुम्हें इल्म गैब पर बात करनी है तो कल करना है मुझसे इल्म गैब पर मैं आपसे बात करने के लिए तो, लेकिन यहाँ मैंने मान ली, यहाँ तुमने ये बात साबित कर दी कि आप अकाबिर परस्ती में इतने मदहोश हो कि अपने अकाबिरों की थोड़ी भी तौहीन तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अरे यार मानते हो, नहीं नबी की तौहीन तुम बर्दाश्त करो, तो ये बताओ कि नबी को, अच्छा ये बताओ मुझे, अच्छा मौलाना ये बताओ, अच्छा ये बताओ मुझे, चलो अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के बाद में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है जी। तो तुम कैसे मुसलमान कहने वाले हो अपने आप को जी तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कह रहे हैं ऐसा इल्म गैब तो जानवर पागल मजनून अब कमी हैवानात को हासिल है? आपकी समझ में ना रहे तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे समझाओ फिर। अरे बाज में भी क्या है, हम कुल थोड़ी मानते हैं, बाजी तो मानते हैं नबी को इल्म गैब का कुल थोड़ी माना जाता है, बाजी माना जाता। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज इल्म गैब की बातें तो बताई हैं अल्लाह ने, क्या कुल मानते हो तुम? क्या तुम कुल मानते हो? सुनो मेरी बात सुनो, अब सुनिए चलिए यहीं सुन लीजिए। अब ये बात बताओ तुम मुझे, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज इल्म मानना है या कुल मानना है, बताओ। चलो मैं बाज मानता हूँ, तो बाज की तो तशबीह दे रहे हैं, बात सही है जब तुम बाज मानते हो तो। जब बाज का ये आलम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का, देखिए सामने नज़ात इन्होंने खुद कबूल कर लिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज इल्म का ये आलम है कि तमाम कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद में सबसे ज्यादा इल्म है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। क्यों मानते हो इस बात को? जी मानते हो? तो ये बाज है नबी का, कुल नहीं है ये, कुल तो अल्लाह के बात है, आलिमुल गैब व शहादत तो अल्लाह ताला है, ये बाज जो है ये नबी का है। बाज इतना है कि नबी जैसा इल्म पूरी कायनात में किसी को नहीं, पूरी कायनात का इल्म एक तरफ रखा जाए ना तब भी मेरे नबी के इल्म का मुकाबला नहीं करेगा, समझे नहीं? तो जब बाज का ये आलम है तो उसी बाज की तुम्हारी तशबीह दे रहे हैं, तो तुम यार अकाबिर परस्ती में इतना क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें जहन्नम से बच जाओगे अकाबिर परस्ती से? ये बताओ तुम मुझे। जी आपके समझ में आ रही बात है? अरे यार तुम समझा दो फिर मुझे, चलो समझाओ, आप समझाओ। अगर कुल मुराद लिया गया तो बात बनती है, बाज मुराद लिया गया है। देखिए सामने हज़रात इनकी देख लीजिए, मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ, आप नबी को क्या मानते हैं, बाज इल्म मानते हैं या कुल मानते हैं, ये बताओ। अच्छा बाज जैसे मानते हैं, बाज मानते हो नहीं?
जी अब बात कितना इल्म है नबी का? क्या अल्लाह के बाद में नबी के मुकाबले किसी पे इल्म है? जिन्हें अल्लाह के बाद तो हुजूर को इल्म है। हुजूर का देखिए सामने नजर, देखिए खुद इकरार कर रहे हैं इस बात का। देखिए कैसी मतलब इनके शैतान ने पकड़ डाला। जब बाज मतलब नबी का इल्म अल्लाह के बाद में नबी का जैसा इल्म किसी के पास नहीं है, तो ये बाज ही तो है नबी का, या कुल है नबी को ये? अगर बाज है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस होगी? मुझे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के बाद में जो सबसे, अरे यार मौलाना 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 मेरी बात सुनो, मौलाना सुनाओ सुनाओ। अगर बाज इल्म है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस? आप मुझे इसका खुलासा कीजिए। अगर हुजूर पहले बोल लो आप। क्या लिखा हुजूर है कि क्या तखसीस? क्या तखसीस किसे कहते हैं? तखसीस के माने क्या है? तखसीस के माने क्या है? आप बताइए ना, आप मेरे समझ में नहीं ना, आप बताइए कि तखसीस के माने क्या है, बताइए आप। तखसीस किसे कहते हैं? तखसीस किसे कहते हैं? आप हमारी बात को समझ नहीं रहे तो आप हमें समझाइए ना। नहीं आप बताओ क्या तखसीस किसे कहते हैं, बताओ, तभी समझ में आ गया आपकी। मैं आपको मैं कह रहा हूँ, अगर बाज़ उलूम में गैबिया मुराद लेते तो उसमें हुजूर है कि क्या तखसीस है? अगर आप तो मैं, समझ नहीं आ रहे तो आप हमें समझाइए कि मुराद। अरे मैं मौलाना मेरा साहब, मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ कि तखसीस के माने क्या होते हैं, ये बताइए आप। तखसीस किसे कहते हैं? आप बताइए। मैं आप नहीं जानते तखसीस को? सुनो मैं बताता हूँ। तखसीस के माने होते हैं खासियत के। तखसीस कहते हैं खासियत को। इसमें हुजूर की खासियत क्या है, समझे नहीं? तखसीस कहते हैं खासियत को। अब मुझे तुम ये बता दो मौलाना, देखो मैं फिर तुमसे दोहराऊंगा यही, तुम अपने सवाल में खुद ही फंस रहे हो। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल है या बाज है? ये बाज है। बाज है। तो अभी तशबीह कैसे दे रहे हैं? बाज से दे रहे हैं, कुल से दे रहे हैं? देखिए सामने नजर, सुन लीजिए इनकी। नहीं, ये तुम्हारे मौलाना जो तशबीह दे रहे हैं तो बाज की दे रहे हैं, कुल की दे रहे हैं? बाज की दे रही है। तो फिर ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? ये सीधी सादी बात है बिल्कुल। जब तुम बाज मान रहे हो कि अल्लाह के बाद में सबसे ज्यादा इल्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो बाज है, और ये तशबीह देना बाज की, अगर बाज उलूम में गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? यानी हुजूर की खासियत क्या है इसमें? ऐसा इल्म गैब तो जानवर, पागल, मजनू सबको हासिल है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो कैसे धर्म में जी रहे हो यार तुम? तुम्हें शैतान नहीं सोचने देता बिल्कुल भी? शैतान नहीं, आपकी असल बात जो है ना, आपके दिमाग में किसी ने पर्दा डाल दिया, हकीकत बात दिया। अरे इबारत सामने पड़ी मौलाना, इबारत तो सामने है। अरे मेरे भाई मौलाना महराज, इबारत तो सामने है। मैं तो तुमसे खुद पूछ रहा हूँ कि जब तुम ये मानना हो, ऊपर से बात पड़ी है। क्या बात पड़ी है? ऊपर बात चली आलिमुल गैब की, आलिमुल गैब की। ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से खोट मेल करके और नबी की शान में गुस्ताई की गई है। ऊपर से बात है आलिमुल गैब की, और आलिमुल गैब व शहादत अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। तो आपका अलग मसला है, लेकिन गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? बिल्कुल भी गुस्ताखी अगर बात कैसे नहीं है? को बात में गैबिया तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? अरे क्या मौलाना खाना खाते हो या गोबर खाते हो? मौलाना क्या खाते हो तुम? नहीं बात जो चल रही है आप उससे बात कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ अकल सलीम है? कुछ कह सकते हो? अकल सलीम है कुछ तुम्हारे पास? अकल सलीम में जब भी बात कर रहा हूँ, अगर अकल सलीम होता बात नहीं करता मैं। अल्लाह के बाद में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? सुनिए, मुझे बताइए, अल्लाह के बाद में सबसे, सुनो, छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो। अरे यार तुमने खलतमल्त कर दिया, बिल्कुल खलतमल्त कर दिया तुमने, टने बेकार कर दी, तुम तो बड़ा बड़ा करने लगे। सुनिए, आपने कई दफे सवाल कर दिया इस बात का कि अल्लाह के बाद स्कूल, मैंने इसका 50 दफे जवाब भी दे दिया। आप ये सुनिए, इसमें कुफर का फतवा आपको उलमा ने लगाया, किसी और ने भी लगाया? उलमाए हरमैन शरीफैन के 36 उलमाए किराम हैं। एक भी नहीं, आपने धोखे से करा, क्योंकि हुस्सामुल हरमैन मैंने खुद पढ़ी है, और इसके अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे बात करते चलिए आप। चलो बताओ, उसको बाद में बात होगी, पहले भागो मत, अब राह फरार इख्तियार मत करो। हमारा आपका मौजू ये है हिफ्जुल ईमान, भागो राह फरार मत इख्तियार करो। देखिए सामने रजा राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अल मुहन्नद अल मुफन्नद भी तुम्हारी हमारी पक्ष में है, वो भी हमारी हिमायत करेगी, तुम उसमें भी फंसोगे, उसमें भी तुम भागोगे। चलो ये सवाल दिखाओ तुम्हारा अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कहाँ है, ये सवाल दिखाओ कहाँ है। आपने जो 36 उलमा ने सवाल करा ना, इसमें क्या लिखा है? हुस्सामुल हरमैन को क्या ये बताया गया था? आपको उलमा ने क्या बातें कही, उनसे सारी बातें हमारे पास, ये इबारत लिख के गई है सब, ये इबारतें लिखी हुई है उसमें, ये इबारतें लिखी हुई है, ये बातें लिखी हुई है, ये इबारत लिखी हुई है उसमें, ये इबारत लिख के दिखाई गई है उसमें, जो तुम्हारे अकाबिरों की कुफरिया इबारतें हैं, वो इबारतें लिखने के बाद में उलमाए हरमैन शरीफान के सामने पेश की गई है। इबारत दिखाई गई थी ना उलमाए हरमैन को, जो हुस्सामुल हरमैन तुम्हारे पास है? हुस्सामुल हरमैन तुम्हारे पास है? अरे हुस्सामुल हरमैन है तुम्हारे पास है जी? ला पढ़ो, उसमें हरमैन में लिखी हुई है कि नहीं है? जी तर्जुमा शुरू कीजिए, अरबी में है ना, अरबी की अरबी सब तर्जुमा कीजिए। उर्दू में भी है वो, उसमें उर्दू में ट्रांसलेट दिया शुरू में ही, सब इबारतें नहीं है। चलिए तो आप जो है पहले इसका तो वो कर लो, कैसे बचा तो लो, कैसे बचाओगे इन्हें मौलाना को? बचा लिया हमने, अगर आप नहीं माने कहाँ बचा लिया? अलग बात है। ये यूट्यूब पर जाएगी, ये यूट्यूब पर जाएगी, आवाम बचाएगी सब, ये आवाम खुद फैसला करेगी,
یہ عوام خود فیصلہ کرے گی. تمہیں علم غیب کی تعریف تک معلوم نہیں, اور تم یہ خود ماننا ہو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو علم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے ایک بات کو اور واضح کرتے ہیں, اس عبارت کے اوپر جو کفر فتویٰ لگا گیا, آپ نے علماء حرمین کو بتایا تھا نا, آپ کو کابینہ کو بتایا تھا علماء حرمین کو. تمہارے خلیل احمد سہارنپوری کے جو استاد ہیں نہیں, ان کی بھی تقریر ہے اس میں, ان کی بھی تقریر ہے اس میں. دیکھیے جتنی بات میں بول رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. بہانہ کی بات نہیں ہے, جتنی بات چل رہی ہے اتنی کی جواب دیجیے. اس عبارت کو پوری عبارت پیش کی گئی تھی یا اتنی سی عبارت پیش کی گئی تھی علماء حرمین کے سامنے؟ پوری عبارت سے تم گلے سے پھندا نکال لو گے اپنے, پوری عبارت سے اپنے گلے سے پھندا نکال لو گے. دیکھیے میں جو بول رہا ہوں پھر وہ اس کا جواب دیجیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں پوری عبارت سے تم نے اپنے گلے سے پھندا نکال لیا, یہ عالم الغیب کی بات ہے, اس سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب کی بات تھوڑی ہماری جو توہین کی ہے نبی کے میرے آقا کی, ہم تو وہاں کی بات لے کر لگا ہوا ہے. ہاں آپ نے جو کہا کفریہ فتویٰ لگا ہوا تھا, آپ علماء حرمین کو کتنی عبارت پیش کی تھی آپ نے؟ اب سنو لو سنو, میں بتاتا ہوں تمہیں, تم مانو گے نہیں ایسے یار, تم آدمی مانو گے نہیں, تم مجھے آدمی کم پڑھے لکھے لگ رہے ہو. دیکھو تمہارے مولانا مرتضی حسن دربھنگی جانتے ہو؟ ہاں چاندپور کو, اسی کے شہر میں بھی بیٹھا ہوں میں. ہاں انہیں کے شہر میں بیٹھے ہو نا, یہاں کے تو تمہارے چاندپور میں ہو نا تم, ہیں؟ جی جی ہاں, تو اسی انہوں نے کتاب لکھی اشد العذاب جی, اس کا صفحہ نمبر ہے 259. اس پہ لکھ رہے ہیں یہ موضوع جو ہے اس میں چلیے, اسی کا جواب دے رہی ہوں, اسی کا جواب دے رہی ہوں. حفظ الایمان کا میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا, میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا, تمہاری طرح نہیں ہٹوں گا مجھ سے. ہم بھی نکالنا چاہیں آپ کو ایک سے موضوع نکال سکتے آپ کو لگا. ارے بھیا میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا, اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں. سن لو, یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید شان کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے علم شیطان ان کو زیادہ کہے یا آپ کے علم کے برابر علم سبیان و مجانین و باہیم کو کہے, کیا کہے یہ مجانین و باہیم کو کہے, وہ کافر ہے. سنو, وہ کافر ہے, مرتد ہے, ملعون ہے, جہنمی ہے. تمہارے مولانا مرتضی حسن دربھنگی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے. یہاں پہ برابر کا لفظ نہیں ہے, آپ نے جو کہا نا برابر, تھانوی کی کتاب میں برابر والا لفظ نہیں, بعض اور کوئی کا یہاں پہ ہے. بس برابر کب کہا میں نے؟ آپ نے کہا کہ اگر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چوپائے میں اس میں ہوتا تو کافی ہو جاتا. آپ نے یہ کوئی عبارت پڑھی ہے؟ ہاں پھر آپ نے ایسے پڑھی نا عبارت, ایک دفعہ عبارت. اچھا مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ چلو اب آخری بات کر رہا ہوں تم سے, آپ کو جواب دیں. پھر دہرا دو, میں لاسٹ کر رہی ہوں تم سے, لاسٹ کر رہی ہوں. میں نے دیکھ لیا تمہاری بات کرنے کا آدمی نہیں ہے تم. یہ بتاؤ کس کا علم ہے؟ سامعین حضرات سن لینا ان کی بات, کس کا علم ہے سب سے؟ ایک بار اور کر دو ذرا, یہ یوٹیوب پر جائے گی, یوٹیوب پر تمہارے آدمی بھی سن لیں گے دیوبندی, ذرا تم پہ ذرا مطلب صحیح کر لیں گے تمہیں. یہ بتاؤ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مطلب بعض ہے یا کل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بعض ہے. بعض, تو یہ تشبیہ کسے دے رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے, تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانور پاگل کو سب کو حاصل ہے, تو کیا تمہارے اندر کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ بات کی تو تشبیہ دے رہے ہیں یا کل کی تشبیہ دے رہے ہیں؟ میں بتاؤں نا آپ کیا کرنا ہے نا, کسی نے کچھ کر دیکھیے سامعین حضرات, اب آپ نے سن لیا پوری, اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, آپ فیصلہ کر لو. یہ ان کی حقیقت ہے اور یہ ان کا دھرم ہے, ان کا لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے ان لوگوں کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے, یعنی نبی کی توہین برداشت ہی نہیں ہے. اور میں نے مولوی اشرف علی تھانوی کے شان میں تھوڑی سی کہہ دیا تو ان کے چیکا لگ گیا, یہ بولے کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. اب میں نے یہ کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم ہیں, تو ان میں مولانا اشرف علی تھانوی کی تخصیص ہے, ایسا عالم تو سور بھی ہے. تو یہ چینت گئے, یہ اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. یہ چلیے سامعین حضرات, اب آپ خود فیصلہ کر لیں, ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہو گئی, اور یہ مجھے لگ رہا ہے علم نہیں ہے ان کے پاس میں. یہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بریلی میں بیٹھے ہو, میں یہاں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے مولانا معراج, تمہارا علم معیار میں نے دیکھ لیا, تمہیں علم غیب کی تعریف تک معلوم نہیں. علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ تمہاری عقل پہ شیطان نے پردہ ڈال دیا ہے. اب تم علم غیب پر بات کرو گے, علم غیب پر بات کرو گے. آپ نے منطق پڑھی ہے؟ علم غیب پر بات کرو گے, ابھی تمہاری منطق دیکھوں گا میں. جی بات کریں گے, کرو گے؟ جی چلو کرو, علم غیب پر دعویٰ کرو. تمہارا کیا دعویٰ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا تھا علم غیب مانے, اس کو کیا حکم لگا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے نہیں, پہلے بتائیے. عالم الغیب کی بات نہیں ہو رہی, علم غیب کی بات ہو رہی ہے. یہاں کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں. عالم الغیب اور علم غیب, اب ان دونوں کی تعریف کیجیے. عالم الغیب و شہادہ اللہ ہے, اور علم غیب وہ ہے جو اللہ کی عطا سے کسی کو حاصل ہو, اسے علم غیب کہتے ہیں. اچھا ہاں, تمہارے گھر سے ثابت کر دوں گا میں, پھر کوئی بات کریں گے. اب تمہارے گھر سے ثابت کروں گا میں مولانا. یہ تو تیار کر ہو جاؤ, علم غیب پر بات کر لیو مجھ سے کسی دن.
علم غیب پہ بات کریں گے. ابھی جو موضوع چل رہا ہے نا اس پہ چلنے دیجیے نا. وہ تمہارا دیکھ لیا بس، ہو گیا تمہارا کام، بس یہ کافی ہے، بس تمہارا پتہ چل گیا. یوٹیوب پر جب جائے گی تو عوام خود فیصلہ کر لے گی. تم تو پوری رات گزار دو گے، تمہارا جو چمار والی کر رہا ہو، تم جب مانو گے نہیں، تم کہو گے کہ مانوں گا نہیں، مانوں گا نہیں تو ہاروں گا بھی نہیں. ارے جب تم یہ ماننا ہو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی کا علم جو ہے وہ بعض ہے، تو اب یہ سچ میں تمہارے مولانا شبیر تھانوی جو دے رہے ہیں کہ بعض کی دے رہے ہیں یا کل کی دے رہے ہیں؟ تمہاری جب سمجھ میں نہیں آ رہی، شیطان نے تمہیں ایسا اپنے جال میں پھانس رکھا ہے کہ تم نبی کی توہین تو برداشت کر سکتے ہو، نبی کی توہین تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں ہے تمہیں. اللہ بچائے تمہارے دھرم سے. اللہ تعالیٰ تمام امت کو تم لوگوں کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور تمہارے عقائد باطلہ سے اللہ تعالیٰ تمام امت کی حفاظت فرمائے، جتنے گندے تمہارے عقائد ہیں. ہمارے عقائد ایسے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی شان کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سارا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے. بالکل بھی نہیں. چلیے ٹھیک ہے صاحب، ان کا فون کاٹ دو، اب ہو گیا ان کا کام. اب پھر کسی بات کر لیں. جمشید بھائی دیکھ لیا آپ نے ان کا علم میں یار؟ جمشید بھائی چلو ٹھیک ہے، کاٹ دو، ان کی بس کی بات نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں علم غیب کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے چلو ہو گیا کام ان کا. آپ سمجھ میں رہے کل اور بعض، یہاں پہ دو ہی لفظ لکھا ہوا، پہلے لفظ تو دیکھیں اس میں کل کیا اور بعض کسے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں بعض؟ چلو یہ بھی کر لو بات، کسے کہتے ہیں بعض؟ کیا فرق ہے؟ چلو کیا فرق ہے تم بتاؤ. ارے عبارت تمہارے مولوی کی میری ہے، یہ عبارت تمہارے مولوی کی، تم بتاؤ بعض کسے کہتے ہیں؟ بعض کسے کہتے ہیں؟ بعض میں کیا کیا آتا بتائیے. چلو بتاؤ کیا کیا آتا بعض میں. چلو بعض میں کیا کیا آتا بتاؤ. چلو تم مانو گے نہیں، ابھی تم چمار والی کرو گے. جس کے پاس کم ہو، بعض کو کم کہتے ہیں حضرت، بعض کو جس کے پاس کم ہو. اور بعض میں کیا مانتے ہو تم نبی کو؟ کس چیز کا علم مانتے ہو نبی کو؟ کس چیز کا مانتے ہو نبی کو؟ بتاؤ بعض میں کیا کیا مانتے ہو. اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم اس کو ہے، لیکن یہاں پہ بعض ہے نا، اگر تو بعض، ارے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں مولانا معراج تم سے، بعض میں تم کیا کیا مانتے ہو نبی کو؟ کیا کیا حاصل ہے بتاؤ. چلو اس کی بھی خلاصہ کر لو. نبی کو کیا کیا مانتے ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بعض علم غیب ماننا ہو نہیں تم نبی کو جی. تو بعض علم غیب میں کیا چیز معلوم تھی نبی کو اور کیا معلوم نہیں تھی، وہ خلاصہ کر دو اس کا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں تو کچھ ہی معلوم نہیں تھی، سب اللہ نے بتایا انہیں. یہ کون کہتا کہ خود جانتے تھے وہ؟ جی. جو یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب جانتے تھے وہ کافر ہے. جی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا، اللہ نے عطا کیا، ہم خود سے نہیں مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے؟ ہاں یہ عقیدہ ہمارا ہے. کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن سے. لائیے سب حوالہ دیجیے، بھیجیے. نہ پہلے اس کے تو خلاصہ کر لو، علم غیب پر کیوں چلے گئے؟ پہلے اس کا خلاصہ کرو کہ بعض میں کیا کیا مانتے ہو آپ. سمجھ میں آئے گی. وہ حوالہ میں دے دوں گا، پہلے آپ اس کا خلاصہ کر دو کہ بعض میں کیا کیا علم مانتے ہو تم نبی کو، کیا کیا علم غیب مانتے ہو، اس کا خلاصہ کرو پہلے. کیا جانتے تھے نبی اور کیا نہیں جانتے تھے؟ میں حضور کو بعض علم مانتا ہوں، بعض اس کی تفصیل کرو آپ نا. لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے. نہ تو مجھے اب مولانا مجھے یہ بتا دو کہ نبی کو کیا چیز معلوم تھی اور کیا نہیں معلوم تھی، اس کا خلاصہ کر دو. جب بعض ماننا ہو تو بعض میں کیا کیا تھا؟ بعض میں کیا کہتا ہے جو اللہ نے بتایا وہ ہے ان کے پاس. ارے میں نے یہ کب کہا کہ اللہ نے نہیں بتایا؟ میں نے ارے یار مولانا معراج تم لڑنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو یار؟ میں نے تو خود یہ کہہ دیا کہ جو یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب جانتے تھے وہ کافر ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ خود سے جانتے تھے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا، اللہ کی عطا سے جانتے تھے آپ، اور یہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے. مگر تم مجھے یہ بتلا دو کہ بعض میں تم کیا کیا مانتے ہو اور کل میں کیا کیا ہے؟ بعض میں یہ ہے کل میں کہ کل تو سب بس اللہ کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بے شک. اب بعض میں بتاؤ بعض میں کیا کیا ہے؟ بے شک. بعض میں وہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا. تو کیا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا علم نہیں تھا اس کو اللہ نے بتایا اسے. ارے تو کیا ہے وہ بعض میں؟ بعض میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن بعض ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کیا چیز ہے مولانا؟ قرآن تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. مطلب بعض ہے کیا ہے یہ؟ کل ہے یہ. کل ہے یہ؟ دیکھیے سامع نظر جی، کل ماننے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں جانتے قرآن کو؟ قرآن کو تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا. نہیں سب نہیں جانتے، اسے چھوڑو، سب نہیں جانتے. یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ اب دیکھیے سامع نظر، انہوں نے قرآن کو ابھی مانا کہ قرآن کل ہے. دیکھیے اب ان کا عقیدہ دیکھیے، اب انہوں نے مانا کہ قرآن کل ہے. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ بتاؤ مجھے. قرآن کو تو ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. آپ جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو؟ جی. الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے؟ جی. الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے؟
इस्लाम का तो तर्जुमा ही नहीं कर सकते, क़यामत का कोई मौलवी पैदा नहीं हो जाए। नबी जानते कि नहीं जानते इसे? वो अल्लाह को मालूम है, इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह कुल है। नबी नहीं जानते? अरे मैं पूछ रहा हूँ इसे अलिफ लाम मीम को अलिफ है, अली नबी भी नहीं जानता अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या कहाँ है। लिखा हुआ कि नबी नहीं जानते इसे? नबी अगर नबी जानते तो वो बताते, लेकिन बताया नहीं। क्या क्या नहीं बताया? सबको अली है, कुछ लफ्ज ऐसे हैं कुरान में जिनका तर्जुमा क़यामत में बताया जाएगा हजरत। अलिफ लाम मतलब मीम हुआ, नबी भी नहीं जानते, इसका मतलब नबी भी नहीं जानते। कुरान नाकिस है, कुरान को नबी भी नहीं जानते पूरा है। देखिए आप मिसाल गलत ले रहे हैं हजरत। नहीं मुझे बताओ कि नबी भी कुरान को नहीं जानते, तो इसका मतलब, अरे सुनिए जरा, देख सामने सुन लीजिए इनकी अल्लाह तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। क्या मतलब नबी नहीं जानते कुरान को? नबी तो जानते, कुरान को क्यों नहीं जानते? तो फिर अलिफ लाम मीम को जानते नहीं जानते नबी? अगर आप यकीदा है ना, आप अलिफ लाम मीम का तर्जुमा करके दिखाएगा, नबी जानते ना आपको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मौलाना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मौलाना महराज, मैं पूछ रहा हूँ कि नबी पे नाजिल हुआ कुरान, क्या नबी कुरान को जानते नहीं जानते हैं? जी नबी जानते हैं। जानते हैं। देखिए सामने हज़रात इनका अकीदा देख लीजिए। अभी तो कह रहे थे कि कुरान कुल है, अब कुरान कुल, अबे सुन लो, अब सुन लो। अब जब कुरान कुल है और कुल को नबी जानना है, तो ये तो खुद काफिर हो रहे हैं अपने अकीदे में, ये तो खुद काफिर हो रहे हैं कि ये कुल गए मानना है अब तो नबी को। ये अभी तो कह रहे थे बाज है और कुरान को ये इन्होंने माना भी कुल। जब इन्होंने कुल मान लिया कुरान को और ये कह रहे हैं कि नबी जानते हैं, तो जब नबी जानते हैं तो कुरान कुल हो गया, तो माज़अल्लाह तुम तो काफिर हो गए, फिर तुम खुद अपने अकीदे से काफिर हो रहे हो और हम मानते हैं बाज। तो कुरान बाज में है, कुल में है। देखिए अगर नबी जानते ना, नबी ये नहीं चाहते कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाए, नबी ये चाहते कि मेरी उम्मत जहन्नम से बचे। जानते तो तर्जुमा बताते हैं, लेकिन अच्छा मौलाना, जिस तरफ जाओगे ना, जिस तरफ जाओगे उस तरफ टांगो उल्टा। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि मैंने, सुन लो कि मैंने सुनो, मेरी नहीं सुन रहे आप, बड़बड़ कर जा रहे हो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने जीन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। काय के लिए? अपनी इबादत के लिए। तो तमाम मखलूक इबादत क्यों नहीं करती? तमाम इंसान और जिन इबादत क्यों नहीं करते अल्लाह ताला की? अल्लाह चाहे तो सबसे इबादत करवा सकता है, ये उसकी हिकमत अमली है, समझे नहीं? ये हिकमत अमली है। ये क्या बात कर रहे हो आपके, अगर नबी जानते तो नबी की उम्मत जहन्नम नहीं जाती। ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो वो तो कह रहा है कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया, तो क्या सब इबादत करते हैं इंसान? ये बताओ मुझे। जो मैंने जो बात कही है, देखिए आपने जो कहा है मैं समझ गया। आपने मैंने जो बात कही है, अगर नबी जानते तो अपनी उम्मत को बताते। मैंने अगर नबी ये तू थोड़ी चाहते कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाए, इससे मुराद आपने क्या लिया? इसी का जवाब तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अल्लाह भी तो ये नहीं चाहता था कि मेरी इबादत न करें लोग। खुद कह रहा है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो सभी लोग इबादत क्यों नहीं करते उसकी? सब बंदगी क्यों नहीं करते उसकी? अगर आप ये हिकमत अमली है। चलिए मैंने आपकी सारी बात मान गया। आप मान ली साहब, मान ली। अब ये मान लिया तुमने, क्या शबली थानवी काफिर हैं? नहीं। क्यों नहीं माना? क्यों मानूं? क्यों नहीं मानोगे? जब बात उलूम गैबिया, जब बात नबी को इल्म गैब मानने हो तुम और बात की तशबीह दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मानोगे उन्हें काफिर? अब काफिर मानो उन्हें। क्यों मानो? क्यों नहीं मानोगे? ये हठधर्मी है तुम्हारी। तुमने अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल भी इल्म गैब मान लिया। तुमने कह दिया कुरान कुल है, तो तुम कुल मानने और कह रहे कुरान को नबी जानते हैं। तुमने ये रिकॉर्डिंग सारी तुम्हारी हो रही है, सब यूट्यूब पर जाएगी। वो देखो, वो तुम्हारे लोग तुम्हारी बहुत मजाक बनाएंगे। तुमने अभी कुल माना, हाँ यूट्यूब पर जाएगी। देखो अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हमने इसके अंदर कोई ऐसी खुश्क और तर चीज नहीं है जो हमने इसके अंदर उठा रखी हो, जिसमें मतलब कुरान के अंदर मौजूद ना हो। कुरान के अंदर जो चीज मौजूद, देखो मेरे पास कुरान नहीं है इस वक्त, और तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख रहे हैं मलफूजात हकीमुल उम्मत में कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है, तो जो लोहे महफूज का इल्म है नहीं, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने एक जुज है, आपके इल्म का एक जुज, समझे नहीं? एक जुज। हाँ, तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं ये, समझे नहीं? तो आप पूरी इबारत पढ़िए, ऊपर से नीचे तक भेजिए हमें, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। मगर अब तुम मुझे ये बतला दो कि अब तुम किधर को भागोगे, बताओ। अभी तुमने ये मान लिया कि बाद इल्म गैब नबी को मालूम है, तो अब बाद में तुम ये भी नहीं बता रहे क्या क्या मालूम था, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि फंस जाओगे तुम इसमें भी, समझे नहीं? तुम ये भी नहीं बता रहे कि तुम नबी को बाद में क्या क्या मानते हो, क्या नहीं मानते। अब जब कुरान पूरा अल्लाह ताला ने नबी पर नाजिल फरमा दिया और कुरान के अंदर कोई बात उठा ना रखी, अल्लाह ताला ने कह रहा तमाम दुनिया की हर चीज हमने इसमें बयान कर दी कुरान के अंदर, तो अब नबी से कौन सी बात छुपी रह गई, तो बता दो यार। और हम मानते हैं कि बात, और वो भी अल्लाह की अता से, ये हमारा अकीदा नहीं कि नबी खुद जानते थे। चलिए आप सुनिए, आपने कहा नबी के कुरान सही है। अगर नबी ने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा बताया, काफ हा या आइन साद का तर्जुमा बताया, तो हमें बता सकते हैं इसका तर्जुमा क्या है?
कौन बता सकते हैं? तर्जुमा बता सकते हैं हजरत? कौन? आप तर्जुमा बता सकते हैं अलिफ लाम मीम मैं नहीं का बता तर्जुमा सकता, क्या दुनिया होता कोई है? आदमी नहीं बता आया सकता कि इंसान लेकिन नहीं, अल्लाह तर्जुमा नाजिल करने का वाला मतलब और जिस महबूब पर उसने नाजिल किया है वो जानते हैं, इसमें राज क्या है वो किसको मख्फी है, पता होगा? वो अल्लाह और उसका आपको महबूब पता ही होगा जानते ना, हैं। नहीं, आपको मेरी बात पता सुनो, होगा ना, आप इसका मेरी बात तर्जुमा सुनो, कीजिए पहले। बीच में मत पहले बोलो। तर्जुमा कीजिए जब बात करेंगे कुरान हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नाजिल किया और ये भी कह दिया उसमें कुरान के अंदर कि हमने सब कुछ आपको सिखला दिया जो आप नहीं जानते थे, सब हमने आपको हजरत सिखला दिया। बात छोड़ के मत भागिए, तो जो बात चल रही है अब उसमें सुनो मेरी बात सुनो, बात कुरान छोड़ जब के अल्लाह ने नाजिल कर दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कुरान को पूरे को मुकम्मल नबी जानते हैं। चलिए, आपके पास कोई ऐसी दलील है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो लेकिन बताया ना हो? दलील है तो आप दलील ही भेजिए कहीं से। किस बात की? ठीक है, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा और काफ हा या आइन साद का तर्जुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो? कुरान खुद दलील है इस बात की, कुरान तो खुद दलील है, कुरान खुद दलील है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हमने दुनिया की कोई चीज ऐसी खुश तरक उठा ना रखी जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो, और ए नबी हमने तुम्हें जो कुछ नहीं जानते सब कुछ सिखला दिया। अबे हजरत, फिर वही बात हो गई। हाँ? जब मालूम है, जब सब चीज बतला दिया तो दलील तो भेजे ना मेरे पास कि अलिफ लाम मीम और काफ हा आइन साद का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा तो भेजिए। इसका मतलब ये फिर अल्लाह को मालूम ना होगा इसका तो फिर तर्जुमा, जब अल्लाह ने बताया नहीं, अपने महबूब को छुपा लिया अल्लाह ने महबूब से। पहले कहा था कि अल्लाह को मालूम है। नहीं, तुम्हारा एतराज तो फिर अल्लाह तक जा रहा है। देखिए सामने हजरात, ये एतराज तो अल्लाह तक भी जाएगा फिर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान में कह रहा है कि ए महबूब हमने तुम्हें, ए महबूब यानी रहमान अल्लामल कुरान, यानी रहमान ने कुरान सिखाया। जब पूरा कुरान रहमान ने अल्लाह ने अपने महबूब को सिखला दिया, बस सोना बड़बड़ करे जा रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, अब बड़बड़ कर रहे हो बीच में, अब बड़बड़ कर रहे हो बीच में, अब गड़बड़ कर रहे हो बीच में, नहीं बोल रहे, नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। सुनिए 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 सुनिए, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है रहमान अल्लामल कुरान, यानी रहमान ने अपने नबी को कुरान सिखा दिया। तो अब कुरान जब सिखा दिया पूरा, तो कुरान के अंदर कौन सी बात मौजूद रहेगा? इसका मतलब ये तुम्हारा एतराज तो अल्लाह पर भी जा रहा है, फिर अल्लाह को मालूम नहीं है इस्लामी का तर्जुमा क्या था, इसलिए नबी को बताया ही नहीं। क्यों जा रहा है? जा रहा है, चले हम नहीं इस बात से जा रहा है। अगर किसी बात को ना बताना, क्या ये इस बात की दलील है कि नबी वो नहीं जानते? नबी जानते, चले उसके पास तो आपको मालूम है कि नबी जानते थे, मालूम है इतना आपको है? अरे जब कुरान को अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने तुम्हें सिखला दिया, ये जब अल्लाह ताला खुद कह, अरे यार मेरी बात तो सुन लो मौलाना, जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि हमने तुम्हें सब कुछ सिखला दिया जो कोई नहीं जानते थे, और कुरान के अंदर जो मौजूद है, हमने कोई चीज खुश या तर्क ऐसी उठा ना रखी तो कुरान के अंदर मौजूद ना हो, और कुरान नबी पे नाजिल कर दिया, तो नबी तो कुरान को जानते हैं। अब इसमें क्या राज है, क्यों मख्फी रखता है इस बात को? ये अल्लाह उसका महबूब बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है और महबूब भी जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में लोगों ने पूछा, लेकिन आपने दिन तक बता दिया, दिन भी बता दिया कौन सा दिन है, आशूरे का दिन होगा, जुम्मे का दिन होगा, ये भी बता दिया, लेकिन सन नहीं बताई। अब सुनो, उसका न बताने का मकसद ये था कि कयामत जो है अचानक आएगी, फिर अचानक आना उसका बाकी नहीं रहता, कयामत जो आएगी अचानक आएगी। तो अब ये बात हो गई मौलाना, ये बातें हो गई इल्म गैब की। अब तुम मुझे बात बताओ कि तुमने बाद इल्म गैब नबी को मान लिया, तो आप कशाफिल थानवी साहब को काफिर मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल काफिर नहीं मानते। तो ये काय की तशबीह दे रहे हैं, बात की दे रहे हैं, कुल की दे रहे हैं? ये बात की तशबीह दे रहे हैं। तो फिर बात, जब तुम नबी को मानने हो तो बात से तशबीह दे रहे हैं, जानवर पागल को, मजनू को, जमी हैवानात बहाइम के, तो फिर ये कुफ्र नहीं है? अगर आपके अंदर इतने अकल होती है, आप बाज और कुल से लफ्ज़ों को समझ जाते हैं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अरे मैं कहूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल अकल नहीं, अकल है मगर तुम समझ भी रहे हो, मगर अकाबिर परस्त में तुम्हें शैतान नहीं समझने दे रही है। हमने अभी तक किताब पढ़ी नहीं थी है, आपने जब बताई ना, जब हमने पढ़ी है, और हमने इससे पहले इस किताब के बारे में सुनी भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये दो लफ्ज़ से इस्तेदलाल हो रहा है कि मुराद क्या है और हकीकत क्या है। क्या इस्तेदलाल हो रहा है बताओ? समझ गया? और कुल और बात से इस्तेदलाल हो रहा है कि हकीकत और लिखी किस मौजूद पे गई है किताब और किस लिए लिखी गई है। क्या मतलब बात से कुल से क्या इस्तेदलाल हो रहा है, इससे बताओ। अरे वो समझा दो, वो भी समझा दो, बात से और कुल से क्या इस्तेदलाल है इसमें? मैंने बता तो दिया हजरत, बात से बाज है, बाज। हाँ, आपको भी मालूम है तो बाज किसे कहते हैं? अब तो मौलाना ये तो बता दो, क्या मदरसे का मुंह देखा कभी नहीं देखा? हाँ, मदरसे का मुंह देखा कभी? बचपन से तो मदरसे में पढ़े, पर जो बात चल रही है पढ़े नहीं हो तो मदरसे में। अरे जब बात तुम नबी को इल्म गैब मान भी रहे हो, अरे तुम नबी को बात मान भी रहे हो इल्म गैब के, नबी को बात इल्म गैब है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मदरसे का मुंह नहीं देखा तुमने, मदरसे का मुंह नहीं देखा। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, मुझसे सवाल कर रहे हो तुम। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब तुम नबी को बात इल्म गैब मानने हो कि नबी को बात इल्म गैब है, तो ये बात की तस्वीर दे रहे हैं, तुम्हारी अकल मर गई क्या? शैतान सोचे नहीं दे रहा तुम्हें? ये बात की तस्वीर दे रहे हैं जानवर पागलों से। बाज इल्म तो किसी के पास हो सकता है यार। तुम्हारे पास क्या इल्म है बताओ? बात
क्या तुम्हें मालूम है कि बाज इल्म तो मेरे पास, मैं यहाँ चलो बैठा हूँ, आप ये चलिए बताओ बताओ, कि मेरे अच्छा पास आसमान इल्म बता रहे है? कितने हैं, चलिए बताओ आसमान बता रहे कितने वो बाज नहीं है, हैं? वो फिर अबू जहल अबू लहब का सवाल हो गया कि हुजूर इसे भी नबी जानते हैं, मेरा आसमान पे तारे कितने नबी जानते हैं। अरे नबी जानते हैं, ये बाज में आ रहा, नबी के बाज में आ रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं आसमान पर तारे कितने हैं। मैं यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ कि बाज है, बाज, ठीक है। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ तुमसे, आप अरे जाहिल अगर साहब, ये ईमान है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मेरे पास यहाँ पे अरे ये भी नबी के बाज में आ रहा है, अरे ये भी तो नबी के बाज में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपके जान अक़दस पर आराम फरमा रही हैं, कहने लगी या रसूलल्लाह इतनी नेकी है किसी की जितनी आसमान बता रहे हैं। बोले हाँ, किसकी? हजरत उमर की। ये मेरे बाप की नेकी होगा कि तुम्हारे बाप की नेकी की एक और उमर की सारी ने तमाम उम्मत की नेकियां उनके मुकाबले की नहीं है। तो तुम मुझे बतलाओ, नबी तो आसमान के तारों को भी जानते हैं और ये बाज में है, नबी के बाज इल्म में, उल में नहीं है, ये बाज में है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है तारे कितने हैं? फिर सवाल को उल्टा लगे गए, उल्टा ले गया मैं। पहले बात ये नबी के बाद में है, नबी के बाद में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाया कि फातिमा का बेटा पैदा होगा किसी साबिया से, और वो तुम्हारी उसमें रहेगा के फलक में। ये बात हटाइए, मालूम है तुम्हें? ये सब बात हटाइए। चलिए, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज इल्म माने, आप क्या मानते हैं, बाज या कुल? बाज। आप भी बाज मानते हैं? हाँ, और वो भी अल्लाह की अता से, वो भी अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से बाज इल्म है। हाँ अल्लाह की हाँ। अता से। तो जब मेरे पास, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप बता सकते हैं वहाँ से मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? तो ये इल्म गैब हो गया, हाँ, ये इल्म गैब हो गया, इल्म गैब हो गया ना ये इल्म गैब हो जाएगा। हजरत इस बात से इस्तेदलाल हो रहा है यहाँ पे। इल्म गैब अगर बाज मुराद होती तो बाज मुझे मालूम है, मैं मेरे पास आदमी बैठे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पे मेरे पास कितने बैठे हैं। सुनो, मतलब क्या मतलब? मैंने आपने भी कहा कि हुजूर को हम बाज इल्म मानते हैं कि बाज इल्म है उनके पास, मानते हैं आप भी? बाज में होता है कि किसके पास क्या है वो उसको मालूम है। अगर आप, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फिर मैंने आपसे सवाल किया था मेरे पास यहाँ पे कितने बंदे बैठे हैं, तो इसे इल्म गैब मानते हो तुम? इसे इल्म गैब मानते हो? पहले सुन तो लीजिए बात को। हाँ। अगर आपको मालूम होता वहाँ से तो उसे कहा जाता इल्म गैब। ये मेरे पास मौजूद है, मुझे मालूम है कि मेरे पास बाज बंदे कितने बंदे बैठे, इसे कहते हैं बाज। तो बाज इल्म तो क्या कहता है, किसी के पास भी हो सकता है। इसे इल्म गैब कहते हैं, इसे इल्म गैब कहते हैं, इसे इल्म गैब कहते हैं। बात सुनिए, अरे मुझे बता दो, इसे इल्म गैब कहते हैं? किसे इसे इल्म गैब कहते हैं? जो आप ये जो आप मतलब जिसके वजाहत कर रहे हो, ये इल्म गैब है? पहले मैंने क्या बात कही ये बताइए। क्या कही? तो समझ में आई क्या जब से? हाँ यार, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहाँ बैठे हो बिजनौर में या चांदपुर में बैठे हो तुम, है नहीं? ये तो कहना चाह रहे हो तुम। अब तुम्हारे पास में क्या आदमी बैठे हैं मुझे मालूम नहीं। ये मौलाना शरीफ थानवी का मुराद इससे ये है। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं उल्टा जो पढ़ रहे हो तुम, सुन तो लो मेरी बात। अब मुझे मालूम नहीं कि कितने आदमी तुम्हारे पास बैठे हैं, तो ये क्या हुआ है? मेरे पास मुझे बात का इल्म है कि मेरे पास कितने बंदे बैठे। अरे तो जब मुझे मालूम नहीं तो मुझे मालूम कहाँ हो गया? अरे बताइए, उल्टी पढ़ रहे हैं ये। जब मुझे ये मालूम नहीं कि तुम्हारे पास आदमी क्या बैठे हैं तो मुझे इल्म कहाँ हुआ फिर? हाँ, मुझे इल्म कहाँ हुआ? इल्म हुआ ना, मुझे यहाँ का इल्म है ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे यहाँ का इल्म है। यहाँ अरे तुम ये इल्म थोड़ी कहा जाता है, तुम तो सामने देख रहे हो ना मौजूद। इल्म गैब उसे कहा जाता है मौलाना साहब। अरे जाहिल हो बिल्कुल, क्या पढ़े लिखे हो नहीं, जो हवा से कमतर से जिसे आदमी महसूस कर सके। मेरे लिए होगा, मेरे लिए इल्म गैब है ही। अगर मैं यहाँ से बता दूं कि तुम्हारे पास इतने आदमी बैठे तो मैं इल्म गैब जानता हूँ, समझे नहीं? मेरे लिए होगा वो गैब। फिर बात को उल्टा मत कीजिए, तुम कर रहे हो उल्टा मत कीजिए। बताओ अच्छा बताओ कैसे? तुम क्या मिसाल दे रहे थे अभी? क्या मिसाल दे रहे थे तुम अभी क्या मिसाल दे रहे थे? बताओ। तुम अपने थानवी को बचा नहीं पाओगे किसी सूरत से भी। बताओ, चलो बताओ क्या अभी क्या मिसाल दे रहे थे तुम कि तुम वहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास कितने आदमी बैठे हो, मैं बैठा हूँ यहाँ बरेली में। हाँ चलिए, आप बरेली में बैठे हैं, चलिए ठीक है, बोल रहे हैं। हाँ आप बरेली में बैठे हैं। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे 50 बंदे बैठे, आपको मालूम है कि 50 है या नहीं है? ना मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ना? असल मौजूद ये मौलाना शरीफ थानवी का लिखा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास मालूम है कि मुझे बात का इल्म है कि मैं यहाँ पे हूँ। अरे मादल्ला तुम मतलब देखिए सामने राजी दारुल उलूम देवबंद के फारिग मुफ्ती हैं, देखिए ये मौलवी दारुल उलूम देवबंद से फारिग होते हैं, ये इनका इल्म है। अरे जब तुम सामने बैठे हो, अरे जाहिल साहब जब तुम सामने बैठे हो तो इल्म गैब उसे कहा जाता है जो हवा से खमसा से जिसे आदमी जान ना सके, तुम आंखों से इन्हें देख भी रहे हो,
कानों से इनकी बातें भी सुन रहे हो, तो इल्म गैब कब हो गया ये? बात से इल्म गैब से नहीं जा रहा हूं। मेरी बात सुनो, जाहिलपन की बात मत करो, ये जाहिलपन की बात करो। ये इल्म गैब कब हुआ? जब तुम सामने देख रहे हो, इल्म गैब कहाँ हुआ? मेरे लिए इल्म गैब है वो। अगर मैं यहाँ से बता दूं कि हाँ तुम्हारे पास इतने आदमी बैठे हैं और वो सच सच बताऊं मैं, तो वो गैब हो गया मेरे लिए गैब है ये, तुम्हारे लिए नहीं है ये। बात ऐसा नहीं होता बात। अरे बिल्कुल जाहिल, मुझे ऐसा लगा मदरसे का मूवी नहीं देखा यार। जमशेद भाई के ऐसे आदमी से बात कराओगे? जमशेद भाई दिमाग लड़वा रहे हो जी खाली मूली। इन्हें ये पता नहीं कि इल्म गैब कहते किसे हैं, बताइए। इन्हें ये पता नहीं इल्म गैब किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास 50 आदमी बैठे हैं यहाँ और तुम बरेली में बैठे हो और मुझे इनका सबका मालूम हो, तो इसलिए इल्म गैब मानना है। अभी अब सामान्य हिसाब सुन लो यार, ये देवबंदी है, ये दारुल देवबंद में ऐसे ऐसे मुफ्ती बनते हैं। देखियो अबे तुम्हें मौलवी कौन बनाया था भैया, ये तो बता दो। मौलाना महराज तुम्हें मौलवी कौन बनाया था? तुम्हें मौलवी कौन बना था? तो आपको किसी मौलवी बनाया? तो जो कुल और बात का फर्क पता नहीं आपको? तो ये कैसे फर्क हो गया? ये बात कैसे होगा? तुम्हें जब हो सामने बैठे, अरे जब तुम वहाँ मौजूद बैठे हो तो तुम्हारे लिए इल्म गैब कब हो गया ये? मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, साफ रिकॉर्ड हो तुम्हारे जूते पड़ेंगे सही करके। तुम मुझे ये बात बताओ, जब तुम वहाँ बैठे हो मौजूद, तुम्हारे पास 50 आदमी बैठे हैं, तो ये इल्म गैब होगा तुम्हारे लिए? मैंने ये कहा था कि अगर आपको मालूम है। मुझे तो मालूम नहीं है ना। हाँ ये अल्लाह को मालूम है। अगर आप वहाँ पे नहीं है तो आप बोलेंगे कि अल्लाह को मालूम होगा। भाई तेरे तो अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो हर चीज का मालूम है। यहाँ बात इल्म गैब की चल रही है। इल्म गैब किसे कहते हैं? तुम बाद में क्या ले रहे हो? अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हें पढ़ाया जाता है, कुछ कराया जाता है, तुम चिल्ले में जा जाकर तो मौलवी ना बन जाते हो। तुम्हें मेरे ख्याल से चिल्ले में ले जाके और तुम्हें मुफ्ती मौलवी बना देते हैं। चिल्लों का मौलवी मुफ्ती बन जाओ तुम। 2 बहने वाले मौलवी नहीं जो आप लोग बनते हैं। तुम्हारा मौलवीपन दिख रहा है यहाँ, तुम्हें जाहिलपन इतना दिखा रहा है। तुम्हें ये मालूम है तुम्हारे जूते मारेंगे देवबंदी तुम्हारी जब यूट्यूब पर जाएगी तो। ये तुम दिखा रहे हो। देखिए सामने हजरात, इन्होंने अभी ये कहा कि मैं बरेली में बैठा हूँ, ये बैठे हैं चांदपुर में इनके पास 50 आदमी बैठे हैं, तो ये कहने की इन्हें मालूम है, तो ये इल्म गैब होगा इनके लिए। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अरे लाना तो तुम्हारी जिंदगी पे यार, तुम्हारे धर्म पर लाना तुम्हारे धर्म पर। क्या सीधा तुम करो, चलो अपने दोबारा करो, चलो करो सीधी, बताओ सीधी बताओ। चलो आपको ये 2 का तरह सही से खुलासा मालूम है, आपको क्या समझा सकते हो? ना तुम सीधी करो, चलो बात से। तुम्हारे अकाबिरों की पूरी उम्र गुजर गई। तुम्हारे अकाबिर जो है अशरफ अली थानवी को जहन्नुम के गड्ढे से निकाल नहीं पाए आज तक। तुम क्या निकालोगे? तुम्हारे तो इल्म में दिख रहा मुझे, बिल्कुल नहीं निकले हुए। तुम जब बाज खुद मान रहे हो नबी को इल्म गैब मान रहे हो बाज को, और बाज की तस्वीर दे रहे हैं, तो लानत तुम्हारे धर्म पर और लानत तुम्हारे मुसलमान कहने पर। तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा होगा। तुमसे कोई गैर मुस्लिम ईसाई तुमसे अगर मुनाजरा करने लगा ना, तो तुम्हारी जूते मारेगा भी होगा, तुम मुनाजरा नहीं कर सकते उससे। अच्छा, क्योंकि वो कहेगा कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों को ये बता दिया करते थे कि तुम जो खाका है वो भी जानता हूँ, और जो तुम छुपा का है अपने घर में उसी में जानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में है, ये कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे। सुनो, कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने हवारियों से कि तुम जो खाते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो तुम अपने घर में छुपा कर रखा है ना वो भी मैं जानता हूँ। तो अब ईसाई से तुम मुनाजरा करोगे तो वो कहेंगे तुम्हारे नबी को तो कुछ भी मालूम नहीं था, तुम्हारे नबी जैसा इल्म तो जानवर पागलों को था। और हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को इतना इल्म था कि वो खाया पिया बता देते थे। लानत तुम्हारे धर्म पर और लानत तुम्हारी जिंदगी पर और लानत तुम्हारे ऐसे इस्लाम पर। अल्लाह ताला तुमसे तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए और तमाम उम्मत को बचाए तुमसे। अरे तौबा कर लो, तौबा कर लो काफिर हो, तौबा कर लो। तुम पक्के काफिर हो, इन काफिरों को बचाने में तुम भी काफिर हो गए, तुम भी काफिर हो गए और काफिर होते चले आओगे। ऐसी तुम पर लानत पड़ेगी, ऐसी अल्लाह ताला की लानत पड़ेगी, ऐसी जहन्नम में जाओगे, जहन्नम में। नबी की शान, नबी की अजमत घटाना तो तुम्हें मंजूर है, लेकिन अकाबिर परस्ती तुम्हारे ले डूबेगी, तुम्हें अकाबिर परस्ती। अरे काटो फोन काटो यार इनका, जाहिल साहब का बिल्कुल जाहिल। जमशेद भाई चलो, हमें नहीं ढकेला, हमने खुद लात मारी है, हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते ही नहीं है, हमने खुद लात मारी है, हमें किसी ने ढकेला, हम खुद ना पढ़ते। हरम में तो हमारे बंदे है ही नहीं, फिर भी अल्लाह ने आपसे तौफीक छीन लिया। हम अपने इमाम के अलावा किसी के पीछे नमाज पढ़ते ही नहीं। हम नबी की हदीस पे अमल करते हैं, नबी की हदीस पे नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 73 में एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। हम अपने अलावा किसी को मुसलमान मानते ही नहीं, तुमसे सबको काफिर मानते हैं। जो इन 4 अकाबिरों क्या दिफा करता है ना तुम्हारे, हम सबको काफिर मानते हैं उसे, जो इनका खड़े काफिरों का दिफा करता है। जय तुम कर रहे हो, तुम भी काफिर हो पक्के, तुम भी पक्के काफिर हो। तुम इस काफिर का दिफा कर रहे हो और दिफा नहीं कर पा रहे तुम इसका। मैं तुम्हें भी काफिर मानना हो, तुम खुद काफिर हो। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा सी गुस्ताखी करे वो काफिर है, और जो उसके कुफर में शक करे ना, मन शक का बेकुफरी वज़ादी फकत कफर, वो खुद काफिर है। तुम काफिर हो। काफिर को काफिर मानना, मोमिन को मोमिन मानना जरूरियात दीन से है।
और जो जरूरियात दीन का इनकार करे वो इस्लाम से खारिज है। तुम जरूरियात दीन का इनकार कर रहे हो। क्या कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने क्या कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने वाला काफिर है। हमारे 25 उलमा ऐसे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़े, मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मदफून है। कोई भी तुम्हारा ना, उलमा हमें दिखाई है, वो तुम्हारे गुस्ताई करने वाले ना है, इसने तुम्हारे गुस्ताई करी है। जिन्होंने तुम्हारे गुस्ताई करी इन पे सब पे लानत बरस रही है। सबकी खबरों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, इनकी खबरों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। जो तुम्हारे मदीने के अंदर कहीं पड़े हैं ना, वो सब उनके अकीदे वही थे जो हमारे अकीदे हैं, उनके अकीदे वही थे। और जो तुम अल मोहम्मद अल मुफन्नद की तुम बात कर रहे थे ना, उसमें भी अकीदे वही जो हमारे अकीदे हैं, उसमें अकीदे वही पेश किए तुमने। क्या क्या मदीना मुनव्वरा के अंदर जो अभी क्या कहते हैं सब्ज़ गुंबद जो मुल्ला शरीफ थानवी को कहता है महफूज है। अच्छा समझ गए? अच्छा जी, कहाँ लिखा हुआ वो? जब ये हदीस पेश आई थी ना कि खबर के अंदर कब्रिस्तान के ऊपर क्या कहते हैं मजार बनाना तो जायज नहीं है, सब तोड़ा गया, तो वहाँ पे मुल्ला शरीफ थानवी ने जवाब दिया था ये नहीं तोड़ सकते हम। कहाँ है फतवा दिखाइयो? हदीस से इस्तेमाल करके जवाब दिया था इसका। कहाँ है? दिखाओ फतवा, दिखाओ कहाँ है, कौन सी किताब में? जी हम दिखा सकते हैं फतवा। दिखाओ कौन सी किताब में? पढ़ो किताब पढ़ो, आदमी के अंदर पढ़ो 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 किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, अरे किताब पढ़ो। ये मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी, मेरे आका नेमत पीर तरीक़त मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जज्बा है कि उन्होंने दौलतुल मक्किया लिखी 8 घंटे में। तुम्हारे जब इन्होंने मौलवियों ने एतराज किया ना नबी के इल्म गैब पर, तो ऐसी किताब लिखी है कि आज तुम्हारे मौलवी भी हैरान हैं किताब को पढ़ते हैं तो। और तुम्हारे इन अकाबिरों ने लोहा माना मेरे आला हज़रत का, इल्म का लोहा माना, लोहा, समझे नहीं? तुम्हारे अकाबिरों ने खुद मेरे आला हज़रत को मुसलमान कहा है, और ये तक का कहा तुम्हारे थानवी ने कि अगर मुझे उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता तो मैं पढ़ लेता, समझे नहीं? आपको अल्लाह ने इस तरह दीन से फिराया है, इस तरह दीन से फिराया। तुम ऐसे ही जलील होते रहोगे दुनिया में कयामत तक, सुबह कयामत तक जलील होगे और जहन्नम में जाओगे, और तुम पक्के जहन्नमी हो। तुम अभी तक दिफा नहीं कर पाए। तुम्हारा इल्मी मेयार देखो कि तुम नबी को इल्म गैब बात मान भी रहे हो, और बात की तुम्हारे थानवी साहब तशबीह दे रहे हैं जानवर पागलों से, तो इधर काफी नहीं मानने। और मैंने थोड़ा कह दिया कि जैसा इल्म थानवी साहब पर है ऐसा सुअर को भी है, तो तुम्हारे मिर्ची लग गई। नहीं, थानवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, नबी की तौहीन कर ले चाहे इतनी थानवी। हम किसी की हम ना नबी की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उलमा बर्दाश्त है तुम्हें नबी की तौहीन बर्दाश्त है, तभी तो तुम काफिर हो गए। इसी बुनियाद पर तो तुम काफिर हुए हो। अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नतुल बकी में जगह नहीं देते। इनको 25 उलमा ऐसे जिस नाम में अभी गिना सकता हूँ कि जो जन्नतुल बकी में मदफून है। तुम्हें कुछ मालूम भी है? कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कुछ मालूम है तुम्हें? कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कुछ मालूम है? जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की है, तुम्हारे आमिर उस्मानी ने खुद ही लिखा था कि हमारी जो किताबें हैं ना ये सब, सुनो, तुम्हारे आमिर उस्मानी ने खुद अपनी किताब में तजिल्लियात देवबंद में लिखा कि हमारी जितनी किताबें हैं ना इन्हें सबको चौराहे पे लग के आग लगा दो इन पे, समझे ना? तुम्हारा आमिर उस्मानी ने खुद कहा था, तजल्ली देवबंद तुम्हारे रिसाले में खुद कहा, मेरे पास मौजूद है। आपके समझ में फिर आपको गलत इबारत पेश की गई है, वो अंग्रेजों के जमाने का वाक़या हज़रत, आप समझ नहीं पाएंगे। वो कौन से अंग्रेजों के जमाने का? उन्होंने किताबों के नाम लिए हैं, सब किताबों के नाम लिए हैं, फलानी किताब है, ये हमारे अकीदे नहीं है, इन्हें चौराहे पे रख के आग लगा दो। सब किताबों के नाम लिए उन्होंने, हिफ्जुल ईमान, तक़वियतुल ईमान, फतावा रशीदिया, हाँ अरवाह सलासा, बहसी जेवर, सबके नाम लिखे हुए उसमें। कहो तो भेज दूंगा, अगर तुम अल्लाह ताला तौफीक दे तो तौबा कर लेना, तो इस गंदे धर्म को छोड़ दो। ये कुफ्र काफिरों का धर्म है, इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से। चलो कुछ नहीं कहता हूँ, आप कुल और बात से इन दोनों पे गौर कीजिए, मंतिक से गौर कीजिए। तुम गौर कर लो मंतिक से, चलो मुझे बता दो। हम तो मंतिक पढ़ते पढ़ाते लोग, कुछ भी गौर नहीं करा तुमने। तुम अकाबिर परस्ती में भाग रहे हो, कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो। तुम मुझे बताओ, नबी को इल्म गैब कुल मानते हो या बाज मानते हो? नबी को इल्म गैब कुल मानते हो या बाज मानते हो? क्या मानते हो? अरे तो बाज में क्या क्या मानते हो तुम जाहिल साहब? क्या क्या मानना हो नबी को बाज में? चलो एक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हाँ क्या है बाज में बताइए, पढ़ो। कोई दूसरा बुला लो, दूसरा हो तो कर दीजिए जी। हाँ, बाज में क्या मानते हो? बाज में फिर वही बात, बाज तो मैंने कई दफे बता दिया कि बाज इल्म किसी को भी हो सकता है। क्या है बाज इल्म? तुम्हें है बाज? तुम्हें है बाज इल्म गैब? बाज इल्म मुझे है मुझे क्या है बताओ, क्या है तुम्हें? बाज इल्म मुझे है, फिर मैं यही कह रहा हूँ। सामाइन हज़रात सुन लेना, देखो ये सुन लेना, देवबंदी मौलवी है ये, इन्हें बाज इल्म गैब भी है, इल्म गैब है इन्हें। देखो हाँ बताओ क्या इल्म गैब है तुम्हें? लानत हो तुम्हारी जिंदगी पे यार। फिर आप गलत लेके गए,
लानत तुम्हारी जिंदगी पे। आप समझ जाए। बताओ इल्म गैब क्या है तुम्हें, चलो क्या इल्म गैब है बताओ तुम्हें बात क्या इल्म गैब है बताओ, तुम्हें बात क्या इल्म गैब है उसका खुलासा कर दो। अरे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, खुलासा कर दो उसका भी, तो तुम्हारे दो बंदी भी सुन लेंगे जरा है। रिकॉर्डिंग हमारे पास जो है, ऐसी बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम पे। हाँ डाल दियो, तुम भी डालियो। तुम ये बताओ बात तुम्हारे पास क्या क्या इल्म है बात का, बात इल्म गैब क्या है तुम्हें बताओ, क्या इल्म गैब है तुम बात मैंने कहा था बात हो सकता है, बात क्या है तुम्हारे पास बताओ, तुम्हारे पास क्या है बात इल्म गैब मुझे बता दो। मैं बताऊँ, आप जानवर को भी है क्या माज़अल्लाह क्या है उसे, जानवर के सामने आप छुरी लेके जाइए, उसे पता है कि वो मेरा खत्म होने वाला। अब तो बेवकूफ आदमी छुरी जब उसके सामने चली गई तो वो इल्म गैब कब रहा। इल्म गैब उसे कहते हैं जो हवा से खमसा से न जान सके आदमी। अबे क्या पढ़े हो मदरसे में नहीं पढ़े हो। अबे यार कम बखत वाली बात क्यों कर रहा है, मैंने कहा बात इल्म किसी को देखो सामने अब ये बदकलामी करने लगी है, अब ये बदकलामी करने लगे, देखिए बदतमीजी आप कर रहा है। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या इल्म गैब है, अरे तुम अपना इल्म गैब भी तो बताओ, अरे तुम अपना इल्म गैब बताओ तुम्हें क्या इल्म गैब है। इल्म गैब मुझे नहीं है, फिर मैं बात को ही कह रहा हूँ, बात इल्म तुम तो हो सकता है। माज़अल्लाह समझ ले, इसका मतलब जानवर को है ही नहीं है, यानी जानवर को तो है इल्म गैब। माज़अल्लाह, अरे अल्लाह बता रहे मुसलमानों सुन लो, है बाज इल्म है, जानवर को बाज इल्म है। क्या है बताओ, क्या है बताओ जानवर को, बाज इल्म जानवर को है क्या बाज इल्म। फिर मैंने कहा कि बाज इल्म हर किसी को है, हर आदमी को क्या है वो एक बता तो कम से कम, तुम अपने बता दो तुम्हें क्या है इल्म गैब, बात क्या इल्म गैब है तुम्हारे पास क्या। मैं अगर आप जानवर के सामने छुरी लेके जाएंगे ना, उसे ही पता है कि अब हलाल होने वाला। फिर यार अबे तुम ये तो बताओ तुम पढ़ते क्या हो। अरे हजरत आगे बोलने दीजिए इनको, और आगे बोले जाओ क्या है, आवाम सुन। और क्या है और बोलो चलो आगे। हाँ वो छुरी लेके जाएंगे उसके सामने तो उसे पता किसी को भी हो सकता है बाज। हाँ तो अच्छा जानवर के पास छुरी लेके जाएंगे। जो आदमी है दुनिया में, पूरी दुनिया के इंसान के पास बाज का इल्म है कि बाज कैसे कहते हैं, थोड़ा बहुत जानने वाला हो। खुलासा कर दो उसे, खुलासा कर दो खुलासा जानवर का, तुमने कर दिया छुरी लेके जाएंगे तो वो कह देगा। मिसाल भी दी आपको क्या, अब आप बताइए बात से मुराद आप क्या लेते हैं। मतलब तुम ये खुलासा कर दो इस बात का कि जानवर के पास छुरी लेके जाएंगे तो उसे भी इल्म है कि वो भी जान गया कि मुझे अब मेरी जान जाने वाली है नहीं। जी बात का इल्म में शामिल है। अच्छा तुम्हें क्या है, अरे जमशेद भाई चुप जरा, तुम्हें क्या है तुम्हें। मैंने जो बताया आप इसका खुलासा कीजिए, आपको क्या अभी करूंगा आपका अभी करूंगा, तुम मुझे बता तुम्हें क्या है। मैंने कह दिया मुझे भी यहाँ का जो माहौल है मैं इस हिसाब से, मैं यहाँ का बाजिल है मुझे भी। मतलब यहाँ तुम अपने कहाँ बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो। मैं मदरसे में बैठा हूँ। मदरसे में तुम्हारे मस्जिदें कितनी है। मस्जिद यहाँ पे यहाँ पे तो बहुत सारी मस्जिद है। चलो तुम्हारे करीब में कौन सी मस्जिद है। करीब में उमर फारूक मस्जिद है, जहाँ मस्जिद है। उमर फारूक मस्जिद के इमाम साहब क्या कर रहे हैं अब इस वक्त मस्जिद में। मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं। देखिए सामने नेता सुन लिया आपने, ये इल्म है इनके पास। हाँ तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, ए मौलाना इमरान मेरी बात सुनो, महराज मेरी बात सुनो। तुम मेरे ख्याल से पढ़ते नहीं हो, तुम्हें गोद में बिठा के इल्म दिया जाता। इल्म गैब कहते हैं उसे जो हवा से खमसा से न जान सके आदमी। आज समझ में आ गई नहीं, यानी अपनी जबान से चख न सके। सुनो, जबान से चख न सके, अरे सुनो मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हें सुन भी रहे हो, बड़बड़ तो कर जा रहे हो बीच में। जो जबान से चख न सके, आंखों से देख न सके, कानों से सुन न सके, नाक से सूंघ न सके, हाथों से छू न सके, उसे इल्म गैब कहते हैं। अब तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारी फारूक आजम मस्जिद के इमाम साहब क्या कर रहे हैं, ये इल्म गैब है। अगर तुम ये बताए थे यहाँ से कि इस वक्त ये काम कर रहे हैं तो तुम्हें इल्म गैब था, उसे कहते हैं इल्म गैब। अब जब तुम्हारे पास कोई आदमी बैठा और मुझे मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम्हारे पास वो बैठा तो तुम उन्हें देख रहे हो, वो इल्म गैब नहीं है मौलाना। वो कौन सी दुनिया में तुम। इल्म गैब उसे कहते हैं जो हवा से खमसा से आदमी जान ना सके। इल्म गैब नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। तो फिर अब तुम नबी को बाद इल्म गैब माना तो नबी का बाद इल्म गैब में क्या ले रहा हो तुम। इल्म गैब अब रहा है जानवर की बात, जब जानवर के सामने छुरी चली गई तो उसके लिए गैब नहीं रहा। नबी की क्या तखसीस है, तो सही बात है, नबी की क्या तखसीस है इसमें। अरे माज़अल्लाह समझ तो वो गैब है कौन सा। अरे अल्लाह के बंदो वो गैब है कौन सा, किसे मालूम हो वो गैब, ये बता दो किसे मालूम है। चलो अच्छा बताओ कौन से जानवर, चलो बताओ कौन से जानवर को मालूम है, अच्छा कौन से इंसान को मालूम है वो गैब। चलो उसमें नबी की तखसीस नहीं है तो कौन से जानवर को, कौन से इंसान को मालूम है, कौन से बच्चे को मालूम है, इल्म गैब बताओ, एक गैब बताओ। चलो फिर बात सुनिए, अगर बाज़ इल्म हुजूर के पास है तो वो हुजूर की क्या तखसीस है, बिल्कुल से। अगर कुल इल्म हुजूर के पास होता तो तब हुजूर की तखसीस होती उसमें। बाज़ इल्म में हुजूर की तखसीस नहीं है। अरे बात उलूम गैबिया अगर हुजूर के पास है, मैं ये तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तो बात उलूम गैबिया में अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या मालूम है उसमें से, नबी को क्या बात था, क्या बात उलूम गैबिया में बात था। गैब मालूम था ना नबी को बात, अल्लाह बतलाते थे वो था जो अल्लाह। अरे मैं कह रहा हूँ
अरे तो यहाँ यही कह रहे हैं ना, तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी अगर कोई बाज उलूम गैब ले लो, गैब का कोई बाज इल्म ले लो, तो उसमें हुजूर की क्या खासियत है? ऐसा तो जानवर पागल को सबको है। हाँ तो मुझे बताओ तो तुम्हें क्या मालूम है, ये इसमें तुम्हें क्या मालूम है गैब? देखिए फिर लोग अगर बाज हुजूर के पास बाज इल्म क्या बाज इल्म गैब मुराद है तो उसको हुजूर, जमशेद भाई बाज इल्म गैबिया मुराद है तो उसको हुजूर की क्या तख्सीस है? और जमशेद भाई सुन रहे हो, तो ये मुसलमान है। अब ये घंटा हो गया, ठीक है, 1 घंटा हो गया, बताओ। नेक्स्ट टाइम में आपको अब कोई और दूसरा टॉपिक में बात करेंगे। अब इनको आवाज समझ नहीं आ रहा है सही से है। कुल और बाज में फर्क पता नहीं चल रहा आपको। कुल और बाज का अगर बाज इल्म किसी के पास है तो उसमें उसकी क्या तख्सीस है? बिल्कुल मौलाना तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम समझ नहीं रहे, तुम मक्कारी कर रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे तुम। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश करेगा, आप समझाइए। आप अब मैं समझाता हूँ, तुम्हें सुनो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम मक्कारी कर रहे हो, जानते हो तुम, लेकिन मक्कारी कर रहे हो तुम अपने मौलवी को बचाने के लिए। इल्म गैब उसे सुनो पहले सुन लो, इल्म गैब उसे कहते हैं जो हवा से खमसा से ना जान सके। देखिए आप यार तारीफ में बार बार मत सुनाइए। तभी तो ये रिकॉर्डिंग होगी बात, तभी तो ये यूट्यूब पर जाएगी, तभी तो तुम्हारे जूते पड़ेंगे ना। अब तुम कह रहे हो कि बाज में हुजूर की क्या तख्सीस है, तो इस बाज में ही नबी को जो बाज इल्म गैब है ना, वो इल्म गैब नबी का ऐसा है जो कि हवा से खमसा से कोई न जान सके। जो अल्लाह ने उन्हें बताया वो नबी जानते और अल्लाह जानता, नबी ने बताया उम्मत को। तो बात मुझे तुम बता दो कि कौन से जानवर को, कौन से इंसान को, वो तुम बता दो। ये तफसीर करी तुम्हारे मौलाना ने, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो ये कहता हूँ कि अशरफ अली थानवी पक्का काफिर थे। तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी पक्के काफिर हैं, और जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। अच्छा तो बात आपने क्या लिया, आपने समझाया? इससे मैंने ये मुराद ये लिया कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन की है, और नबी के इल्म गैब को जानवरों पागलों से मिलाया है, तशबीह दी है। तो नबी की शान में तौहीन करना, नबी के नारायण मुबारक को अगर कोई हकायत की नजर से जुतिया कह देना तो काफिर हो जाएगा। और यहाँ बहुत बड़ी तौहीन कर रहे हैं, नबी के इल्म गैब की बात कर रहे हैं यहाँ। अबे तो अल्लाह के बंदों में मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि बाज़ उलूम गैब किसे मालूम है? अल्लाह के अलावा कौन जानता है? अल्लाह ने जिसे बता दिया वो जानते हैं, औलिया इकराम जानते हैं, जो जिसे कहा जाता कश्फ कहा जाता, करामत कहा जाता। फिर बात का लफ्ज़ आया, आप कुल मुराद ले रहे हैं। अबे तो अल्लाह के बंदो बात तुम्हें है कुछ इल्म गैब? तुम्हें है बाज, तुम्हें है, तुम मालूम है बाज, तुम्हें बात मालूम है इल्म गैब? आप यहाँ बात की तशरीह कर रहे हैं, कुल मुराद तुम्हें मालूम है बात, चलो बात की तशरीह कर रहे हैं, तुम्हें क्या इल्म गैब मालूम है बाज? तुम बताओ, चलो तुम्हें ये कहना है ना कि जब बाहिम मजनू बाहिम सबके लिए हासिल है, जानवर के लिए हासिल है, तो तुम्हें क्या मालूम है बाज? बताइए कौन सा इल्म गैब जानते हो तुम? एक बात एक ही बताओ। चलो बाज में तो बहुत आता है, बाज में बहुत सी चीजें आ जाएंगी, तुम एक बता दो तुम्हें इल्म गैब की चीज का, चलो एक का बता दो कि मुझे इस चीज का इल्म गैब है। तुम्हारे पास है। चलो ये बताओ तुम्हारे घर में क्या बच्चे हैं? अब मैंने आपसे ये तशरीह करनी है, तुम्हारे घर में बच्चे क्या है ये बताओ तुम्हारे? हाँ मैं ये बताऊँ, तुम्हारे घर में बच्चे क्या हैं? तुम्हारे पास क्या बच्चे हैं? मेरे साथ 20 बच्चे। 20? हाँ। तुम्हारे पास 20 बच्चे नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम्हारा काम ही झूठ से चलता है, और तुम्हारा धर्म ही झूठ पर टिका हुआ है। अरे मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी क्या हुई हजरत? तुम्हारी शादी नहीं हो तो ये बताओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारे पास बच्चे कितने होंगे? अब कितने होंगे मुझे क्या मालूम? इसी को इल्म गैब कहते हैं। इसी को इल्म गैब कहते हैं। अब समझने की कोशिश करो, मक्कारी मत करो। इसी को इल्म गैब कहते हैं। आपकी बात अगर जब मैं पहले इस बात की दलील दे रहा था तो आप मान क्यों ले रहे थे? इल्म गैब कहाँ मानिए, मैं तो सब मानी हूँ, तुम्हारी बात तुम नहीं मान के दे रहे। अब आप मानोगे थानवी काफी नहीं। अब देखो ये सुनो, अब सुनो, अगर ये नबी के सुनो नबी के अरे सुनो अब ये अगर नबी के बाग में भी लोग नहीं तुम, तो नबी ये भी जानते हैं, नबी को मालूम इस बात का इल्म गैब था कि किसके पेट में लड़का है लड़की है। तो अब ये बात में आ गया नबी के, अब ये बात की तस्वीर दे रहे हैं। एक मिनट, अब आगे मत जाइए, 1 मिनट। आप नबी जानते थे इसके पेट में लड़का है लड़की है? हाँ जानते थे। पारा नंबर 16 पारा नंबर 21 खोलिए, सूरह लुकमान खोलिए, आखिर की तवजाहत पढ़िए। इसमें नबी अल्लाह ने क्या फरमाया, किसको इस बात के इल्म है और किसको नहीं, खोल लिया। अच्छा ये बात बतलाओ कि अगर कोई नबी के अलावा और कोई जानता हो कि कौन कम मरे? अरे मैं इतने मत भड़को मौलाना, इतने मत भड़को। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है। ऐसा उल्टा टांगूंगा कि सारी जिंदगी तड़पोगे, सारी जिंदगी तड़पोगे, सारी जिंदगी। अच्छा नबी को नहीं मालूम? सारे कहेंगे नहीं, आपकी समझ में आ रही। तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा, इन 5 आयत की आप तशरीह कीजिए, 5-6 आयत की पूरा खुलासा मिलेगा। हाँ मानोगे इसे?
आपने क्या कहा कि हुजूर जानते थे कि औरत के पेट में बच्चा है या क्या है, हाँ 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 लड़का है लड़की है। हाँ हाँ आपका हाँ। नंबर 21 खोले सूरह लुकमान से हमने दलील अरे मुझे मालूम है, मुझे बस खुलवाओ, मुझे मालूम है। अब तुम मुझे बात बताओ, तुम मानते हो तो कुरान को? कुरान को मानते हो? तो कुरान अरे मानते हो कुरान को? मैंने आपको ये हवाला दिया। तुम्हारे उस्ताद बैठे हैं ये, कुरान को मानते हो? उस्ताद एक दिन अब तुम मुझे ये बतलाओ, अब सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देर बड़ मत करो यार। सूरह लुकमान आखिरी आयत, सुनो सुनिए, अरे सुन तो लो जरा, अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, हाँ अरे बात तो सुन लो जरा। अब तुम मुझे ये बतलाओ, सूरह लुकमान आखिरी आयत जो है, इसमें अल्लाह ताला 5 बातों का जिक्र कर रहा है जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है? जी है नहीं, यही तो बात है। जी जी। तो क्या अल्लाह के बताने से भी नहीं जानता कोई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जान सकते ना गैर के? नहीं जान सकते। देखिए सामने ना, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जान सकते। सुनिए सुनिए, हाँ सुनो सुनो सुनो, अब सुनो सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो मौलाना, मौलाना सुन लो। अब ये बात बतलाओ कि हुजूर तो नहीं जानते, अब हुजूर के अलावा कोई उम्मती जानता है इस बात को? नहीं। और अगर कोई जानने का दावा करे तो मुसलमान है, काफिर है वो? फिर है काफिर है। देखिए सामने हजरात, इन्होंने इकरार कर लिया कि वो काफिर है। तो मेरे हाथ में किताब है तुम्हारी, तज़किरतुर रशीद, समझे नहीं? अच्छा हाँ, लिखने वाले तुम्हारे मौलाना कुतुब आलम जी ने, रशीद अहमद गंगोई जी ने कुतुब आलम कहते हो, उनकी किताब है। लिखने वाले तुम्हारे आशिक इलाही मेट थी। वो इसमें लिख रहे हैं कि एक मरतबा आपके चाहने वाले थे मौलाना सादी यकीन, वो बीमार पड़ गए। लोगों ने कुतुब आलम साहब से कहा कि इनके लिए दुआ कर दीजिए, तो आप खामोश रहे। जब लोगों ने ज्यादा जिद की तो आपने कहा, सादी यकीन साहब, उन्होंने मौलाना तुम्हारे कुतुब आलम साहब ने, कि मियाँ ये अभी नहीं मरेंगे, मरेंगे भी तो मेरे बाद मरेंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि कुतुब आलम साहब के बाद में मरे वो। तो ये काफिर होगा तुम्हारे फतवे से? तुम्हारे मौलाना रशीद अहमद गंगोई ये जानते थे कब मरेंगे कब जिंदा रहेंगे? अच्छा सुन लीजिए, दूसरी सुन लीजिए, अब दूसरी सुन लीजिए। इसी तज़किरतुर रशीद में तुम्हारे आशिक इलाही मेटी सुनो, लिख रहे हैं कि जब मौलाना तुम्हारे कुतुब आलम साहब की तबीयत खराब हुई तो बिस्तर पर पड़े थे, बिस्तर में रखते, तो लोगों से पूछते थे जुम्मा है क्या? लोगों ने कहा कि नहीं है, कि जुम्मा है क्या कि नहीं है। जब बताया लोगों ने कहा जुम्मा है तो पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें मालूम था कि मेरा मौत जुम्मे के दिन होगी, जुम्मे का इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारी ये किताब है अरवाए सलासा, अरवाए सलासा, उसमें तुम्हारे लिख रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी, सुन लो, अरे सुन लो तो लो रहा, तुम्हें भी जानते नहीं हो मुझे, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी है, ऐसा उल्टा लटकाऊंगा कि याद रखोगे, करबटें दुखूंगी तुम्हारी करबटें। तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं इसमें कि मौलाना कासिम नानोतवी के एक मुरीद थे अब्दुल्ला राजपूत, उनसे लोग ताबीज लेने के लिए आते थे। सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो, भागो मत। अब्दुल्ला राजपूत से ताबीज लेने के लिए लोग आते थे, तो आप कह देते थे कि तेरे लड़का होगा, सुनो सुनो, कह देते थे आप कि तेरे लड़का होगा और तेरे लड़की होगी, तो जो आप कहते थे वही होता था। जिसके लड़की कहते थे लड़की होती थी, जिसके कहते थे लड़का होगा लड़का होता था। तो सामने हजरात, इनके फतवे से इनके मौलाना अशरफ अली थानवी भी काफिर हुए और रशीद अहमद गंगोई भी इनके काफिर हो गए, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई भी कह रहे थे कि अभी नहीं मरेंगे, मरेंगे भी तो मेरे बाद मरेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि अभी मरेंगे ही नहीं है। वो जानते थे कि कब तक जिंदे रहेंगे। सूरह लुकमान की आयत का इन्होंने इस्तेदलाल किया, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया है कि औरत के पेट में क्या है और कौन कहाँ मरेगा, ये भी नबी जानते हैं, ये भी नबी ने बता दिया है अल्लाह की अता से। और इन देवबंदियों का अकीदा ये देखो कि इनके मौलवी तो सब कुछ जानते हैं लेकिन नबी कुछ नहीं जानते। अरे मौलाना, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? गैब की बात इल्हाम कहते हैं, अल्लाह किसी किसी के ऊपर इल्हाम करता है, ये गैब की बात माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये मतलब अल्लाह ताला बंदों पे, मतलब उम्मती पे इल्हाम कर सकता है लेकिन नबी नहीं जानते, यानी उम्मत ही जान सकता है इस बात को। माज़अल्लाह सुम्मा लानत तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे धर्म पर लानत, लानत तुम्हारे धर्म पर लानत। यानी उम्मती तो जान गया कि पेट में क्या है औरत के, नबी नहीं जानते, अल्लाह क्या था, नबी अल्लाह नहीं बता सकता नबी को, यानी अल्लाह उम्मती को तो बता देगा, उम्मती को तो इल्हाम हो जाएगा कि अभी नहीं मरेंगे और इसके पेट में लड़का होगा या लड़की होगी, उम्मती तो बता देगा, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को नहीं बता सकता। ये इनका अकीदा है। देखिए सामने सुन लीजिए। अरे जमशेद भाई कि जाहिल से पाला डलवा दिया तुमने। जमशेद भाई, आपसे एक सवाल करता हूँ। अरे जमशेद भाई, अरे कौन से जाहिल से मिला दिया तुमने इससे, तो जाहिल आदमी है। पहले एक बात, पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये सवाल नहीं होते हैं, सवाल नहीं होते हैं। मैं एक सवाल करूँ आपसे? सवाल नहीं होता है, सवाल नहीं होता है। पहले मैं आपसे सवाल करूँ। तुम्हारा जो हमारा इख्तिलाफ है वो अकाईद का इख्तिलाफ है। सवाल मत करो, अपना दावा पेश करो, हुक्म लगाओ जैसे मैंने हुक्म लगाया था। सवाल करो आप एक। सवाल नहीं होता है। अगर तुम्हारा कोई एतराज है तो अपना एतराज रखो, दावा करो और दावे के साथ में हुक्म लगाओ, और तुम्हारा दावा तुम्हारे अकाबिरों के मुआफिक होना चाहिए। अगर तुम्हारे धर्म के खिलाफ हुआ तो अलग अलग किताबों के हवाले दिए। चलिए सुनिए,
आपने अलग अलग जो किताबों के हवाले दिए हैं, चलिए मैं इससे खुलासा करता हूँ कि इमाम अबू हनीफा आपके इमाम है, आप इनको अपने इमाम मानते हैं? आप नहीं मानते? इमाम मानते हैं ना आपको? आप नहीं मानते? इमाम मानते हैं या नहीं, तो ये बोलिए। अरे आप मानते नहीं मानते? आप हमें मत पूछिए, मैंने आपसे सवाल किया, आपसे पूछा, आप इमाम मानते इमाम अबू चलो हनीफा? तुम्हारा तो इस्लाम से कोई बात नहीं है, खैर तुम तो जिधर कुछ आओ उधर को चल दो। नहीं, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए आप। ना तुम्हारा इस्लाम से कोई बात नहीं है ना। हनीफा को अपना इमाम मानते हैं? हम तो मानते हैं। इमाम नहीं मानते? मानते हैं। हो? हाँ अपना इमाम मानते हो? अपना इमाम ने अपना इमाम मानते हो? अरे इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम मानते हैं। बताइए पहले। है? अपना क्या कहते हैं, अपने आपको हनफी कहते हैं ना आपको? हाँ 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 हाँ, चलिए, इनके ऊपर क्या कहते हैं, जब ये नहाते हुए आदमी जब क्या कहते हैं पानी चलता था नाले में, तो अल्लाह ताला इनको गुनाह दिखा देता था, और साहबा को नहीं दिखाया। क्यों? क्या दिखा देता था? उनसे बड़े थे ना। क्या दिखा देता था? अल्लाह, जब ये कोई आदमी वजू करता, गुस्ल करता, कि ये जो पानी उसके बदन से टच होकर नीचे जो नाले में बहता था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बता देते कि आदमी किस गुनाह से नहा के आया है, और साहबा को इसका अल्लाह ने ये अता नहीं किया। क्यों? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मैं आपको बताऊंगा ना। आपने पढ़ी नहीं है? किताब का नाम बताओ। आपने पढ़ी नहीं है? नाम बताओ। जो हजरत अगर आपके अंदर अकल होगी ना, फिर दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। अरे ये मुझे नाम बताओ किताब का। झूठ क्यों बोल रहे हो? समझ में आया तो मैं आपको क्या समझा सकता हूँ? अब ये तो तुम्हारे पक्ष में कब है? ये तो मेरी तरफ आ रही है। ये तो मेरा पक्ष कर रही है ये बात। तो जब अल्लाह ताला एक नबी उम्मती को बता सकता है, जब अल्लाह ताला एक उम्मती को इल्हाम कर सकता है, अरे अजहल साहब, जब अल्लाह ताला एक उम्मती को इल्हाम कर सकता है तो क्या नबी को नहीं बता सकता? नबी को नहीं बता सकता? यानी जो जिनके लिए तमाम कायनात को पैदा किया, तमाम मखलूक को पैदा किया, अल्लाह ताला उन्हें नहीं बतागा? है उम्मती को बता देगा। आपको समझ में आ रहे तो फिर जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्या तुम समझ रहे हो? बुजुर्गों? अरे बदतमीज करने लगे, बदतमीज कर लगे। अरे सबको ले लो ना, सबको जितने भी ये गाली के बकरा है तुम्हारे पास में बैठा हुआ। जाओ, इसे थानवी को बचाना पाओगे तुम। तुमने कुफर आलम को अपने कुफर के घाट उतार दिया, और तुमने अशरफ अली थानवी को दोबारा कुफर के घाट उतार दिया। चलो वापस में। चलो जमशेद भाई, हो गया इनका काम। चलो किसी और मौजूद बात करेंगे फिर किसी दिन। ठीक है, गुलफाम भाई रखते, ठीक है।